Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what's the biggest change that you will experience in this year 2026. इस बारे में reading है and I know I again got a haircut done. I don't know, it happens to me every 2 years. I'm a tomboy kind of girl, so I will remain that. I have like a prominent Ardra in my chart in Navamsha. Like some major planets are placed in Ardra, so I'm like that. I'd also tell people when you have like moon, sun, your Atma Karak planet in the Ardra nakshatra, you will become like Ardra. If it's in Navamsha, your real identity is about Ardra then. बर्थ चार्ट में तो फिर वो तो डे वन से ही दिखेगा, बट नवामशा में जब आर्द्रा नक्षत्र है तो एक पर्सन व्हेन दे ग्रो अप, when they are like in their late 20s early 30s, then that ardra nature comes in. अगर आर्द्रा नक्षत्र में उनका सन मून राइजिंग आत्मकारक प्लानट प्लेस्ड है नवामशा में आर्द्रा में, then that ardra comes out. Ardra is a राहु रूल्ड नक्षत्र, so something out of the box, something extraordinary जो आपको भीड़ से अलग करता है. Ardra females are quite tomboy. Growing up they were again tomboy people. सो या जब भी मेरे ऊपर काम का थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो मेरे होता है कि मैं अपने बाल कटवा दूँ, बिकॉज आई एम समवन हु लुक्स लाइक अ मैड साइंटिस्ट. व्हेन आई हैव लॉट ऑफ वर्क ऑन मी, आई लुक लाइक अ मैड साइंटिस्ट. आई डोंट वांट टू लुक लाइक दैट, सो आई डोंट वांट टू लुक जैसे मेरा कोई घर ही नहीं है. आई हैव अ होम, आई एम नॉट होमलेस, सो आई जस्ट कट शॉर्ट माई हेयर. नहीं तो बार बार बाल बनाने पड़ते हैं. आई एम अ पर्सन जो बाल कंघी नहीं करता है 2-3 दिन, तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. So Ardra individual is like a storm. It's a fierce form of Shiv, which is Rudra. So yeah, that's why we look like this. So not a girly girl. So yeah, boycott is like the best. Your productivity really rises. So yeah, let's get started with your reading. What's the biggest change that you will experience in this year 2026? Let's get started. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have clouds, it says shape shifting. Pile 2 new moon, it says promise. Pile 3 lotus flower, it says unfoldment. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी अगर इन कार्ड्स का पास है तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑलराइट, अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 1 को पिक करना है आपने. अगर आपका बर्थडे 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28th को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी आ रहे स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the clouds card here, or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. What's the biggest change that you will experience this year 2026 में? What's the biggest change that you will experience this year? Pile 1. All right. We have King of Cups. Okay. All right. Okay.
I do have things to say, but first I want to pull some more cards. Okay. We have Six of Swords. You will not be alone. In 2026, you're going to feel that I'm not alone. There are people who love me, who understands me. ज़िंदगी एक संघर्ष तो है, वो तो सच्चाई है जीवन की. ये कहना कि भाई आपकी ज़िंदगी में से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, ये तो सच नहीं है. ये बात, ज़िंदगी एक संघर्ष है, कुछ ना कुछ तो लाइफ में चलता ही रहता है. तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स उसी संघर्ष को, इसी जीवन को रिप्रेजेंट करता है. बट स्पेशली विद द किंग ऑफ कप्स, इन कंजंक्शन विद किंग ऑफ कप्स, इट शोज मी दैट यू आर नॉट गोना फील अलोन. देयर विल बी समवन, देयर विल बी, कुछ तो है. आप कह सकते हैं यूनिवर्स, कॉस्मोस इज विद यू, और सम पर्सन, सम लिटरली physically there's going to be people around you, and some of you will be able to meet the love of your life, will be able to get married, will be getting in a romantic relationship. But for some of you it also is about कि जैसे जो cosmos है, जैसे like just for example अभी की अगर हम बात लें, अभी सन ने जो है कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करा. जब भी सन कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करता है, ऑलराइट, तो सभी के अंदर ये एक धुन सवार हो जाती है कि हमें प्रोडक्टिव होना है, हमें काम करना है, हमें डिसिप्लिन लेकर आना है, हमें जो है काम काम काम, नो आराम करना है, कोई आराम नहीं करना, सिर्फ काम करना है. तो जीवन से इनफैक्ट लोग जो है ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, गायब होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज हमारा ज़्यादा फोकस ही जो है अपने करियर पर, अपने कर्म पर जाता है कि हमें काम करना है. इवन जो लोग आपके अराउंड होंगे वो भी काफ़ी कर्म प्रधान हो जाएंगे अभी के समय में, क्योंकि अभी जो है सन ने कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट किया है जस्ट अभी. तो जो ये समय है, अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरे को कोई चीज़ शुरू करनी है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए मेरे को डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो ये समय ऐसा है जहाँ पर आप वो चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, उस चीज़ को सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में करेंगे और बहुत तेज़ी से उस चीज़ में आगे निकलेंगे. बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप के अंदर ज़रूर होगी, मोटिवेशन होगा काम करने का. तो एक ये धुन सवार है, ये सभी पर ही है, क्योंकि सन का ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न में तो सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है ना. तो सभी अब काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो काम शायद वो पहले नहीं कर पा रहे थे उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे. तो एक प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट 1 मंथ के लिए सभी की बढ़ेगी, है ना. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, द कॉस्मोस इज़ विद यू, द यूनिवर्स इज़ विद यू. बट जैसा मैंने कहा, इस साल स्पेसिफिकली जो बिगेस्ट चेंज आप अपनी लाइफ में देखेंगे, मे बी इट कैन हैपन कि फॉर सिंस बर्थ यू वर सिंगल, सडनली इन 2026 यू गॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, यू मेट समवन हु यू फेल्ट अ डीप कनेक्शन. और डीप कनेक्शन तभी एक इंसान फील करता है दूसरे से, अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली समझें तो डीप कनेक्शन इंसान तभी फील करता है जब सामने वाले का मून हमारे मून से कनेक्टेड हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपका मून लीब्रा का है, तो सामने वाले मून का भी मून लीब्रा को हो या फिर एरीज का हो, बहुत ज़्यादा दिल मिलेगा आपस में, एक दूसरे के दिल की बात को जानते होंगे. ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से आपका मून स्वाति नक्षत्र में, लीब्रा में, तो जो इंडिविजुअल आपको मिले उनका भी मून स्वाति नक्षत्र में ही बैठा हो, या विशाखा नक्षत्र में बैठा हो, या फिर चित्रा नक्षत्र में हो, लीब्रा साइन में ही, है ना. दिस कैन इवन हैपन. राहु केतु का प्लेसमेंट मिल सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका राहु एरीज का है, तो सामने वाले पर्सन का भी राहु या तो असेंडेंट में प्लेस्ड है या एरीज का ही प्लेस्ड है. तो जब राहु केतु की एक्सेस मिल जाती है तो एक आदान प्रदान का रिलेशन बनता है, कि जैसे अगर आप में से कुछ लोगों का अगर राहु केतु मेरे राहु केतु से अलाइंड हो, लाइक माई राहु इज इन जेमिनाई, केतु इज इन सेजिटेरियस, है ना. तो आपका भी अगर राहु केतु इन्हीं साइंस में, आप मेरे से रीडिंग कराने ज़रूर आओगे, आप मुझे पैसे दोगे रीडिंग करने के लिए और मैं आपको रीडिंग करके दूंगी, क्योंकि आदान प्रदान का रिलेशन होता है. जहाँ राहु केतु हो जाते हैं सिमिलर साइंस में, सिमिलर हाउसेस में, तो एक इंसान उस इंसान से, दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है और पैसों का आदान प्रदान ज़रूर होता है. हस्बैंड वाइफ के चार्ट भी बहुत सिमिलर दिखेंगे आपको, स्पेशली राहु केतु का एक्सेस सिमिलर मिलेगा, क्योंकि उन दोनों का आदान प्रदान है आपस में, इस लाइफ टाइम में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जो उनको पे ऑफ करना है. तो मुझे वो चीज़ का इंडिकेशन यहाँ दिख रहा है, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड शो करते हैं संघर्ष को, है ना. ये पर्सन एक पहाड़ी चढ़ रहा है, चढ़ने में जोर लगता है ना. तो जब आपको जीवन में जोर लगेगा, जब आप 2026 में ऐसा फील करेंगे कि मेरा तो पूरा ही शारीरिक बल, मानसिक जोर लग गया है किसी चीज़ में, तो देयर विल बी पीपल हु आर गोना सपोर्ट यू, गोना अपलिफ्ट यू, हु विल हेल्प यू.
तो वही है ना, हस्बैंड वाइफ का यही तो रिलेशन होता है कि मुश्किल हालातों में, बैड हेल्थ या पॉवर्टी या जो भी मतलब बुरे हालातों में भी हम एक दूसरे का साथ देंगे, अच्छे हालातों में देंगे, बुरे में भी देंगे। तो ये हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिलेशन है ना। वो अलग बात है कि लोग आपस में लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ फाइट्स, बट है तो ना यही चीज़ की मैरिज का एक वन ऑफ द पर्पस इज कंपेनियनशिप। तो वही बात है कि ये इंडिविजुअल जो होंगे या जो यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, दे विल नॉट लीव यू, दे आर गोना बी विद यू, विल गेट अलाइंड विद यू। तो कुछ ऐसे लोग आपको जीवन में जुड़ते हुए दिखेंगे जो आपके साथ अलाइन होंगे। यूनिवर्स या जो ट्रांजिट्स हैं प्लैनेट्स के, वो आपके प्लान्स से अलाइन होंगे। ऑलराइट, वैसे तो जो हमारी सोच होती है, मून सोच को रिप्रेजेंट करता है, थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, मून मानस है। तो जिस साइन में मून का ट्रांजिट होता है जिस समय में, उस साइन जैसा ही हम व्यवहार करते हैं, सोचते हैं। हर घंटे एक प्लैनेट हर घंटा एक कोई प्लैनेट रूल करता है, घंटा यानी हॉरा आवर, तो हम उस अकॉर्डिंग ही बात कर रहे होते हैं। तो एवरीथिंग इज़ एक्चुअली वेरी मच अलाइंड। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानेंगे तो आपको पता लगता है। बट आई जस्ट वांट टू से कि यूनिवर्स इज गोना बी अलाइंड विद यू, कॉस्मोस विल बी अलाइंड विद यू। आप जहाँ एफर्ट डालेंगे वहाँ ग्रो करेंगे, एंड कोई इंडिविजुअल आपके साथ होगा जो आपको हेल्प आउट ज़रूर करता रहेगा। एंड ओह माय गॉड अभी हम ये बात कर रहे थे रिलेशनशिप मैरिज की बात कर रहे थे, वी गॉट द लवर्स कार्ड। सो यू विल फील अ सोलमेट कनेक्शन विद समवन। ये पर्सन पास्ट लाइफ का पर्सन है। ऑलराइट, तो अगेन मार्स वीनस का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में। मार्स वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर आपके चार्ट में। तो या मार्स के आगे वीनस हो या मार्स के पीछे वीनस हो, है ना, या 3-11 का रिलेशन हो सकता है, मार्स से तीसरे घर में वीनस हो या मार्स से 11वें घर में वीनस हो। ऐसी प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी। पाइल नंबर 1 चेक करना। तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी मार्स वीनस का बताया, ये शो करता है कि पास्ट लाइफ के हस्बैंड वाइफ से आपकी मैरिज होगी। पास्ट लाइफ में जो आपका लाइफ पार्टनर था वही इस लाइफ टाइम में आपको मिलेगा और उसी से ही आपकी मैरिज होगी। और ये लव मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है यूजुअली, बट अगेन काल देश पात्र पर एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। तो अगर आप एक बहुत क्या कहें ट्रेडिशनल फैमिली से, ट्रेडिशनल जगह पर जहाँ लोगों का माइंडसेट ही थोड़ा ट्रेडिशनल है, तो एक अरेंज मैरिज भी हो सकता है, बट वही है कि पास्ट लाइफ के पर्सन से होगी। तो ये कॉम्बिनेशन ज़रूर होगा चार्ट में, चेक करना। पाइल नंबर 2 लवर्स डेफिनेटली अगेन शोज मी दैट योर रिलेशनशिप विद योर लाइफ पार्टनर विल इम्प्रूव इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इफ यू आर यू नो इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ लाइफ पार्टनर, तो डेफिनेटली आई सी कि उनके साथ रिलेशन आपका और अच्छा होगा, ज़रूर होगा। एक पैशन, एक सेक्शुअल एनर्जी, इंटिमेसी, इट इज़ इंक्रीजिंग। मे बी बोथ ऑफ यू मे गेट सिमिलर टैटूज डन दिस ईयर। Alright, will go for vacation this year, will be helping each other out। जैसे शेप शिफ्टिंग का कार्ड है क्लाउड, चाहे आपने इस कार्ड को पिक करा है, जैसे भी मतलब आपने इस फाइल को सिलेक्ट करा है, दिस शेप शिफ्टिंग कार्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रीडिंग बिकॉज इट टेल्स मी दैट आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, इन अ सेंस के जहाँ पर आप एक दूसरे की आउट ऑफ द वे जाकर भी मदद करेंगे, है ना। एक दूसरे की तरफ आपका प्यार, सम्मान बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। सम ऑफ यू में इवन प्लान टू गेट अ डॉग और अ कैट, विल वांट टू रेज दैट डॉग और अ कैट टुगेदर, क्योंकि आज की डेट में हर कोई नो वन लाइक हर कोई नहीं चाहता कि वी शुड हैव चिल्ड्रन। सम पीपल जस्ट वांट टू हैव अ कैट और डॉग और वांट टू बी चाइल्ड फ्री। तो ये भी कॉन्सेप्ट है ना। तो सम ऑफ यू कैन एक्चुअली गेट अ पेट डॉग और अ कैट, और मे बी लिटरली कैन प्लान फॉर अ baby. Then we have the hermit energy. Hermit here shows that you will be more peaceful with your own company. शायद पहले नहीं थे। पहले आप अगर अकेले बैठे होते थे, आपको आप ही का थॉट प्रोसेस, आप ही का मन खा जाता था। पहले आप अकेले बैठ के लोनली महसूस करते थे। बट नाउ व्हाट्स गोना हैपन इन द ईयर 2026 इज दैट यू विल लव योर मी टाइम, यू लव टू स्पेंड मी टाइम, यू लव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ, जहाँ पर मतलब आप और आपके थॉट्स हैं। एंड मे बी यू विल जर्नल, मे बी यू आर गोना डू समथिंग क्रिएटिव, मे बी यू आर गोना रीड सम कोट्स जो कि आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी, होप भरते हैं। यू विल स्टार्ट टू मेडिटेट, यू विल स्टार्ट टू enjoy your own company. Somehow आपको ये भी फीलिंग आए when I'm with lot of people, my nervous system get overly sensitized. my nervous system वो तांडव करना शुरू कर देता है। nervous system मतलब ऐसा हम कहते हैं वो दिमाग खच हो गया जी, इतनी हमने इतनी बात करी या इतना दिमाग को यूज़ कर लिया कि दिमाग की गरारियाँ घिस गई, दिमाग खच हो गया तो ऐसी फीलिंग आना जब आप बहुत ज़्यादा बात कर लो किसी से,
या बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के कांटेक्ट में आ जाओ, तो यू मे फील लाइक माई एनर्जी स्टार्ट्स टू डिप्लीट। एंड ये शायद पहले नहीं होता था, या पहले भी होता था तो ज़्यादा आपने ध्यान नहीं दिया, पर नाउ यू जस्ट फील दैट माई ओन कंपनी इज़ सो पीसफुल, so nice. I may not want other people. So you're enjoying your me time, you're enjoying your time with your life partner, you have a small circle, not a big one, but a small circle जहाँ आपका कोई एक दो दोस्त है, that's it. Again, पुनर्वासु नक्षत्र कैन बी prominent in your chart, जो कि जेमिनी और कैंसर में होता है, कैंसर में स्पिल करता है। तो पुनर्वासु पर्सन के एक दो दोस्त ही होते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं होते। अगेन यू कैन ऑल्सो बी एन आर्द्रा पर्सन और मूला पर्सन। मूला एंड आर्द्रा पीपल आर वेरी वेरी लॉयल एंड कमिटेड काइंड ऑफ पीपल। दे कैन इवन पुट द स्कल इन फ्रंट इफ द टाइम केम। मतलब अगर अपने दोस्त के लिए वो जान देना चाहे तो दे भी देंगे, मतलब इस टाइप के लोग होते हैं आर्द्रा और मूला नक्षत्र पीपल। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग। अगर उनके दोस्त पे कोई वार करेगा या उनके लव्ड वन पे कोई वार करेगा तो दे विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन। तो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एंगर भी उनके अंदर जनरेट हो जाता है। तो ये नक्षत्र भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होंगे। आर्द्रा जेमिनी में होता है और मूला सेजिटेरियस में। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स इट शोज भी कि अब पहले शायद सारी दुनिया का बोझ आप उठाते थे। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है कि जो बैड टाइम था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम था, या बहुत बोझ भी नहीं, बोझा यानी बहुत जो है काम आपने पास्ट में किया है। एंड नाउ इन 2026 यू विल एक्चुअली लिव योर लाइफ। ऑल्दो यू आर स्टिल गोना वर्क, यू आर स्टिल गोना पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स योर करियर, विल रीच हाइट्स। आई सी स्पेशली विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, यू विल रीच हाइट्स इन योर करियर। तो जो आपका गोल है जीवन में, या जो आपका है कि भाई मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, उसको आप अचीव कर जाएंगे 2026 में। बट लाइक 10 ऑफ वॉन्ड्स शोज दैट इन दिस 2026 ईयर यू विल नॉट बी I would say handling everything alone. You will have people who will help you out. आप मदद लेने से जो है घबराएंगे नहीं, या मदद लेने से कतराएंगे नहीं। आप कहोगे कि मैं काम करूँगी बट आई वॉन्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, आई कांट डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो ये बहुत अच्छी आप में आपकी हैबिट बनती है कि आप हर काम खुद नहीं करेंगे, दूसरों से भी काम कराएंगे। जिसका ना सन 10th हाउस में हो, या सन कैप्रिकॉर्न का हो बर्थ चार्ट के अंदर, और सन के आगे वाले घर में भी और पीछे वाले घर में भी मरकरी ना हो, वीनस ना हो, जबकि ये प्लैनेट्स बहुत क्लोज ही होते हैं सन से। बट अगर ये प्लैनेट्स नहीं है क्लोज, सन कल्ला बैठा है कैप्रिकॉर्न में या 10th हाउस में, ऐसा इंसान ना सारे काम खुद ही करेगा, क्योंकि सन राजा है और कैप्रिकॉर्न सैटर्न का साइन है जो कि सर्वेंट का साइन होता है। तो ऐसा राजा, ऐसा पर्सन सर्वेंट के भी काम, नौकर के भी काम खुद ही कर रहा होगा, और फिर वो कहेगा कि भाई मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं तो बहुत ही काम करता हूँ, फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ये है कि आप अपना काम करिए, आप दूसरे का काम क्यों कर रहे हैं? जो दूसरा काम आपको लगता है जो मैं कर देता हूँ, वो किसी और से भी आप करा सकते थे, पर आपने वो भी खुद कर लिया, और जो अपना काम था वो भी करा। पर अगर जो काम दूसरा कर सकता था उसको वो दे देते, तो आप अपना काम और बेटर तरीके से और एक्सपैंड कर पाते, अपने काम को, अपने करियर को और हाइट्स तक पहुंचा सकते। पर आपने अपनी एनर्जी उस काम में डाल दी जो शायद दूसरा भी कर सकता था। तो ये सन कैप्रिकॉर्न वाले की प्रॉब्लम होती है। आई माई सेल्फ हैव सन इन कैप्रिकॉर्न, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है ये बात कि जो काम शायद कोई और भी कर सकता है ना, वो भी मैं ही कर रही होती हूँ। मेरे को ये चीज़ रियलाइज्ड है कि मुझे किसी और से करानी चाहिए, बट क्योंकि मेरा खुद का सन कैप्रिकॉर्न में, तो वो मेरी नेचर का पार्ट हो गया, क्योंकि सन सोल का कारक होता है, वो कैप्रिकॉर्न में बैठा है, तो मेरे से दूसरे से काम नहीं कराया जाता, वो भी काम मैं ही कर रही होती हूँ। तो ये मेरे को पता है मेरी खुद की गड़बड़ है, और मैं इसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बट वही है, जैसे मेरे होम्योपैथी डॉक्टर कहते हैं कि इंसान की जो नेचर होती है वो बहुत बदलना मुश्किल होता है। तो हालांकि कोशिश रहती है, बट वही है, नेचर है तो है भाई, ऐसा बदलना बहुत मुश्किल लगता है। तो अगेन कोई मेरे जैसा सन इन कैप्रिकॉर्न जो लिए बैठा है, मैं कहूँगी मदद ले लेना, तो बहुत बढ़िया रहेगा, ज़िंदगी थोड़ी आसान चलेगी और आप और काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो दूसरे का काम जो आप दे सकते हैं दूसरे को, वो दे दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। सन इन कैप्रिकॉर्न वाले को लगता है कि मेरे से बेटर ये कोई काम कर ही नहीं सकता है,
उसको एक ये भी फीलिंग आ रही होती है कि मेरे को जैसा चाहिए काम पता नहीं मेरे को सामने वाला करके देगा भी कि नहीं देगा. एक ऐसा परफेक्शनिस्ट होना ये भी एक चीज़ होती है. सो yeah, then we have intuition. It says trust your intuition. So of course यहाँ पर जो आपका intuitive mind है वो काफ़ी strong है. आपका intuition बहुत ज़्यादा strong है. जो चीज़ें हमें आँखों से दिखती है, कानों से सुनते हैं, कई बार वो सच नहीं होती, पर जो हमारा अंतर्मन कह दे कि ये सही है और ये गलत है, वो सच में वैसा ही होगा. वो सही होगा और वो गलत होगा. तो आप अपने अंतर्मन से, अपनी इंट्यूशन से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में. यू आर बिकमिंग मोर इंट्यूटिव. यू आर गोना फील लाइक कि भाई मैंने पूरी उम्र जो है अपने लॉजिक से मैं चला हूँ. एंड यू नो फ्रॉम योर ओन सेल्फ यू आर गोना फील कि नॉट जस्ट फ्रॉम दिस रीडिंग बट फ्रॉम योर ओन सेल्फ यू आर गोना फील लाइक, अपने आप से यू विल फील लाइक कि इस साल मेरे को अपनी इंट्यूशन से चलना है, मुझे अपने मन से चलना है, इंट्यूटिव माइंड से डिसीजन लेने हैं. you're going to feel this way because you're like कि मैंने पूरी ज़िंदगी लॉजिक से डिसीजन लिया है, let me use my intuitive brain this year या intuitive mind this year. And we have dragonfly. It says live a life to the fullest. Absolutely yes. अभी हम जैसे यही बात कर रहे थे ना कि आप काम भी करेंगे बट आप मौज भी करेंगे जीवन में. मौज कैसे होती है जीवन में? पार्क में घूमना, फ्री टाइम होना अपने पास जिसमें हम जर्नलिंग कर सके, राइटिंग कर सके, ड्राइंग कर सके, पेंटिंग कर सके, कैरेओके गा सके, डांस कर सके, अपने फेवरेट लोगों से मिल सकें, बाहर पार्टी सेलिब्रेशन का भी पार्ट बने. अगर कोई हमें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाता है, कोई और शादी ब्याह में बुलाता है तो हम उसके जा सके. हम सिर्फ काम में ही व्यस्त ना रहें, हम अपना जीवन जिए क्योंकि जीवन बहुत छोटा है लंबा पर कई बार बहुत छोटा लगता है. पलक झपकते ही 5 साल कब बीत गए, 10 साल कब बीत गए पता नहीं लगता. अगर एक बार और पलक के झपका दी तो क्या पता बूढ़ी हो जाओ, है ना. तो ड्रैगन फ्लाई कार्ड हेयर टेल्स कि ये जो साल है 2026 इट्स गोना बी द ईयर ऑफ एन्जॉयमेंट एज वेल फॉर यू. स्पेशली ये ग्रीन कार्ड है जो कि मरकरी का कलर होता है ग्रीन. मरकरी बच्चा है, मरकरी बचपन को रिप्रेजेंट करता है. आई फील मैनी ऑफ यू विल हैव अ बैड मरकरी. बैड मरकरी का मतलब है कि चाहे मरकरी वर्गों में एग्जॉल्टेड हो, 6th हाउस में एग्जॉल्टेड हो, बट उसके बावजूद उसके ट्राइन में राहु मार्स आ गए, मलेफिक प्लैनेट्स आ गए. ऑलराइट, तो आपके 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम मरकरी मार्स या राहु होंगे या दोनों ये प्लैनेट्स हो सकते हैं. इनमें से कोई एक प्लैनेट होगा जो कि ये शो करता है कि देयर विल बी कट्स एंड ब्रेक्स इन योर एजुकेशन. अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आपके एजुकेशन में कट्स एंड ब्रेक्स भी आएंगे क्योंकि मरकरी एजुकेशन का कारक है. ड्रॉप ईयर आ जाएगा 10th के बाद, +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप ईयर आ जाएगा. प्लस बचपन आपने अच्छे से जिया नहीं, बचपन में ही यू फेल्ट लाइक एन अडल्ट. आपको सब समझ आती थी, बचपन में बचपन आपका था ही नहीं. But what I see is कि अब you are going to become a childlike adult, childish adult. I see 2026 is the year where you are going to heal your inner child, where you are going to have fun, will play games, will spend time in hobbies. Then we have leadership card. It says set your goals. So leadership card here shows me that you are going to become the leader. You will have inner strength, you will feel more confident, you will feel that yes, I have self-esteem, you will feel that yes, whatever I am doing, it is taking me towards my purpose. Leadership card, obviously you will get a leadership position in your life, in your career. Somehow, somewhere you will become a leader in the year 2026. अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, because you belong to the stage. Will get name and fame. We have 4th house. It says home. So 4th house मदर का है, रेस्ट का है, पीस का है, स्लीप का है, खाने पीने का है. किचन एरिया को 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है. तो इट डज शोज मी 2026 में किचन में आप बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो. नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ वे जहाँ पर आप अपनी फेवरेट मील्स प्रिपेयर करो. आपको 2026 में गर्म खाना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भाई रोटी नहीं खानी, फुल्का खाना है. फुल्का यानी जो तवे से अभी अभी उतर के आया है ना. तो गर्म खाना खाना है, फ्रेश खाना खाना है, अपने आप घर पे बनाकर खाना खाना है, अपना कंफर्ट मील्स ज़रूर खानी है. जो हमें ऐसी मील्स होती हैं जो हमें कंफर्ट, जैसे कई लोगों को मैगी ही कंफर्ट फूड लगती है, तो चलो वही खा रहे हो. यहाँ पर ये दिख रहा है 2026 में, है ना. आप अपने कंफर्ट, रेस्ट, पीस ऑफ माइंड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, मेडिटेशन करोगे, प्राणायाम करोगे, नया बेड, नई बेड शीट, पिलो,
पिलो केसेस, इस पर आप इन्वेस्ट करने वाले हो 2026 में। मदर के ऊपर जो है पैसे खर्च करोगे, यानी मदर को नई चीज़ें दिलाओगे, चाहे कपड़े हैं चाहे कुछ और चीज़ें हैं मदर के लिए, है ना। मदर को कंफर्टेबल फील कराओगे। मे बी यू हायर अ मेड एंड यू टेल योर मदर दैट आप ऑर्डर दोगे, आप बॉस हो, ये काम करेंगी या करेगा, ऐसा आप सर्वेंट कोई अपना रखो। दिस कैन इवन हैपन। मदर को मतलब आप हेल्प आउट करेंगे। कोई मदरली फिगर आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको मदरली नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो परिवार के लिए बहुत कुछ करते हुए आप नज़र आ रहे हो। घर गाड़ी खरीद सकते हो, बिकॉज 4th हाउस घर गाड़ी भी होते हैं। सो सम ऑफ यू मे इवन बाय अ होम और अ कार। देन वी हैव द 3rd हाउस, इट्स इज कम्युनिकेशन। सो 3rd हाउस इज ऑफ सोशल मीडिया। अगेन मरकरी मार्स का कंजंक्शन हो सकता है। मरकरी मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है कि आपको सोशल मीडिया पर नेम एंड फेम मिलेगा। सो मेनी ऑफ यू आर गोना बिकम वेरी सीरियस अबाउट कंटेंट क्रिएशन, विल पुट कंटेंट ऑलमोस्ट एवरी डे एंड विल गेट नेम एंड फेम, विल गेट लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स। 3rd हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स के जो आपका स्पीच कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, इम्पैक्टफुल हो रहा है। अगेन मरकरी राहु कंजंक्ट है। मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, या अगेन राहु जेमिनाई का है। तो ऐसे इंडिविजुअल का स्पीच बहुत पावरफुल होता है। ये इंडिविजुअल अगर किसी को मैनिपुलेट करना चाहता है तो आराम से कर सकता है, उसको ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, सोचना नहीं पड़ेगा, और नेचुरली उसका स्पीच ऐसा होगा जो दूसरे को रियलाइज़ करा देता है। सच पीपल आर वेरी गुड मार्केटर्स, सच पीपल आर वेरी गुड सेल्स पर्सन, बिकॉज दे विल मेक यू रियलाइज़ कि भाई अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो आपका जीवन चल ही नहीं सकता, आपका जीवन नीरस है, आपका जीवन जो है बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट है। तो दे विल मेक यू फील कि अरे ये तो चीज़ घर पे होनी ही चाहिए। सो ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में भी हो सकता है, राहु जेमिनाई का, या फिर मरकरी राहु का कंजंक्शन। मरकरी राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन होगा चार्ट में, चेक करना मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट we have the white stag. It says shape shifting. Oh my god, and it says support other world. यहाँ पर भी cloud shape shifting का कार्ड है। पहला कार्ड cloud shape shifting, और एंड का भी कार्ड जो है शेप शिफ्टिंग का आया हुआ है। Oh my gosh, like I'm telling you, यूनिवर्स कॉस्मोस एक लिविंग चीज़ है, वो सब सुनती है। आप ये मत सोचिए कि मैं कल्ला हूँ, अकेला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, नहीं, यू आर नॉट अलोन। यूनिवर्स जीती जागती चीज़ है। तो जो एनर्जी आप यूनिवर्स में डालते हैं, जो आप सोच क्रिएट करते हैं, तभी मैं कहती हूँ पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, वो ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाते हैं प्रैक्टिकल रियलिटी में। सो अगेन शेप शिफ्टिंग सेम एलिमेंट यहाँ पर भी है। यू नो, यू आर चेंजिंग द वे ऑफ योर लाइफ। आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बदलता है, आप ज़्यादा रीगल रॉयल तरीके से रहेंगे। अगेन लीडरशिप का कार्ड है, लायन is the king of the jungle, right? So it does shows me that you आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में इंक्रीज होगा। आप को लोग जो है नेचुरली रिस्पेक्ट करेंगे, और जो आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, इट्स वेरी रीगल एंड रॉयल। तो साधारण व्यक्ति आप नहीं नज़र आ रहे 2026 में। आप अगेन आप भीड़ का हिस्सा नहीं, आप just belong to the stage, all right, and you will get lot of support. अच्छा राजा वही है ना जिसकी प्रजा उसके हक में है, जिसकी प्रजा उसको चाहती है ना। तो वही है कि यहाँ पर आप दूसरों के प्रति बहुत हेल्पफुल होंगे, दूसरों के प्रति बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो people really like you, people feel that you have such a big heart, kind heart, and people will feel कि इस ज़माने में भी आप जैसे एक जेनरस, काइंड हार्टेड, लविंग पर्सन एग्जिस्ट करता है। तो आप वो इंडिविजुअल हैं जो कहीं ना कहीं इस कलयुगी दुनिया को समाये हुए हैं, या कलयुगी दुनिया को, मतलब कलयुगी दुनिया नहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है या करप्शन है, आप उस दुनिया में भी एक लोटस की तरह रहते हैं, प्योर रहते हैं, पवित्र रहते हैं, अच्छी शुभ कामना, शुभ भावना सभी के लिए रखते हैं। तो पीपल फील दैट यू आर अ वेरी अदर वर्ल्डली पर्सन, यू आर सो पॉजिटिव, यू डोंट बिलोंग इन दिस युग, यू डोंट बिलोंग टू कलयुग, बिकॉज इट फील्स दैट यू आर सच अ सत्युगी पर्सन, यू आर सच अ प्योर, काइंड, generous, honest person. So you know, like people feel this way about you. So yeah, that was pretty much it for you, pile number 1. ये आपके लिए बिगेस्ट चेंज आ रहा है इन दिस ईयर 2026. एस्ट्रोलॉजी के लिए देखे तो कई मैंने प्लानेटरी प्लेसमेंट ऑलरेडी बताई, और बाकी जैसे साइन ऑफ जेमिनाई है, कैंसर है,
लिब्रा है, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पेल करता है कैंसर में, पुनर्वसु स्पेल करता है कैंसर में, पुष्या श्लेषा. लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. विशाखा स्पेल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा. मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा सेजिटेरियस में होता है. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D2 और D9 चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. मरकरी हो गया, सैटर्न हो गया, सन हो गया, इनमें से कोई प्लानट आपका आत्मकारक प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इनमें से कोई एक प्लांट होगा. ग्रीन कलर कैन बी योर फेवरेट, या अभी से आपको ग्रीन कलर बहुत बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा. सो yeah, that was pretty much it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below if you're interested in these bracelets. These are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the new moon card. It says promise, or you picked this pile because आपका बर्थडे 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28 को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. व्हाट्स द बिगेस्ट चेंज दैट यू विल एक्सपीरियंस दिस ईयर 2026? क्या वो बड़ा बदलाव है जो आप एक्सपीरियंस करेंगे इस साल, जो आपने बदलाव पहले नहीं फील करा, एक्सपीरियंस करा? पाइल 2. Okay, we have 9 of Swords. Oh my God, it shows that this year is going to be the year where you will be managing your stress, anxiety, sleep, because ये एक चल रहा था आपका फेज, और मे बी अभी भी चल रहा है, कि जहाँ पर नींद ही नहीं आती, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है. पास्ट फ्यू ईयर्स हैव बिन द ईयर्स जो बहुत आपका पीस ऑफ माइंड ख़त्म ही कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन ज़िंदगी में चल रहा था. और ना स्ट्रेस टेंशन चल रहा था, उसके बाद वो स्ट्रेस टेंशन ख़त्म भी हो जाता है. मतलब समय कभी भी एक जैसा तो रहता नहीं, ऑब्वियसली समय तो बदलता है ना. तो समय भी चला गया स्ट्रेस टेंशन का, बट वो जो स्ट्रेस टेंशन है हमारी बॉडी से, वो गया नहीं, वो अभी भी चल रहा है. तो मैनी ऑफ यू वर डीलिंग विद बैड हेल्थ, are dealing with somehow bad health, bad physical और mental health. At times में भी आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हो कि भाई क्या मेरी फिजिकल बॉडी ज़्यादा ख़राब है या मेरी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब है? क्योंकि मेंटल हेल्थ ख़राब है, फिर मैंने दौड़ के देखा, कुछ सेकंड ही में दौड़ पाया, उसके बाद तो मेरी सांस ही फूलने लगी. आई रियलाइज़ कि मेरी तो फिजिकल सेल्फ भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है. तो जो 2026 ईयर है, इट्स गोना बी द ईयर ऑफ गुड हेल्थ, फिजिकली एज वेल एंड मेंटली टू. Again, we have 3 of Swords. I told you. तो अभी 2026 is the year where you will be able to heal yourself. आप mentally, physically, emotionally, spiritually हर aspect में अच्छा feel करेंगे, क्योंकि 2026 healing आपके लिए लेकर आएगा. Past में definitely, past 3 years, 4 years, और for some of you it can even be past 9 years, बहुत शायद बढ़िया आपके नहीं रहे हैं. कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में हुई हैं, मे बी कोई पर्सन आपके जीवन से चला गया, किसी की कोई समवन पास्ट अवे, और कोई चीज़ ऐसी जो जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डेट में आ गए. मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई है ज़िंदगी में पास्ट में जिसने आपको बहुत रुलाया है, बहुत मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब करा है, स्ट्रेस दिया है. एंड 2026 इज़ गोना बी द ईयर ऑफ हीलिंग फ्रॉम दिस chaos. Alright, we have a 4 of Swords. Again, 3 of Swords heartbreak को represent करता है, 4 of Swords healing from that heartbreak को represent करता है, कि बेड पर रिलैक्स हो जाना, सो जाना. जो राइडर वेट्स का टेरो डेक होता है, जो मेन हमारा टेरो है, उसके अंदर 4 of Swords में अगर आप गूगल करेंगे, पिक्चर ऐसी दिखेगी जहाँ पर एक पर्सन लेटा हुआ है, आराम से लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, सो रहा है. और मैं कहती हूँ कि जो ये सोना है, स्लीप है, आई फील इन दिस डे एंड एज इट्स ऑल्सो लग्जरी. क्योंकि लोग तो नींद की दवाइयाँ लेते हैं, बहुत बुरा हाल है, लोग नींद की दवाइयाँ लेते हैं. इतना एंजाइटी होता है, दिल की धड़कनें जैसे बढ़ गई है, माई हार्ट इज़ रेसिंग, ऐसा बोलते हैं, जबकि हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, सारे ब्लड टेस्ट सब क्लियर हैं.
इट्स एक्चुअली एनजाइटी, इट्स समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ. थॉट्स मतलब रुकते नहीं हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते आप अपने थॉट्स पर, कुछ ना कुछ मन सोचता ही चला जाता है. तो ये चीज़ों से आप कहीं ना कहीं आपने काफ़ी डील करा है, मे बी अभी भी डील कर रहे हैं. व्हाट आई सी विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कि अब इससे हीलिंग है. अब आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा होती हुई दिख रही है, आपको स्लीप अच्छी आ रही है, हेंस आपका अगला दिन जो है वो बहुत अच्छा निकलता है, जाता है. आप अच्छे एक्सरसाइज भी करेंगे, दिल लगाकर एक्सरसाइज भी कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. नए फ्रेंड्स बनाएंगे और पुराने वालों को टाटा गुड बाय करेंगे. पुराने फ्रेंड्स या पुराने ऐसे लोग जिन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया, फाइनली आप पावर टू पैकअप का इस्तेमाल करते हैं. यानी आप कहते हैं कि अब यहाँ से मेरे को अपना पैकअप करना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी विद दीज पीपल, बिकॉज दीज पीपल हर्ट मी रियली बैड. इन लोगों ने मेरे को दुख दिया. तो यू आर लाइक you are not emotionally dependent on them anymore. You will find new friend circle, I see, and you're ready to move on. अब कोई ये रोमांटिक रिलेशनशिप था, कोई फ्रेंडशिप थी, क्योंकि फ्रेंडशिप में भी कई बार इंसान को धोखा मिल जाता है अगर मरकरी ख़राब हो. लेट्स से आपका मरकरी चाहे एग्जॉल्टेड बैठा हो वर्गो में या 6th हाउस में, तब भी अगर मरकरी के ट्राइन में राहु और मार्स आ गए, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम मरकरी देयर इज़ राहु और मार्स, या इनमें से कोई एक प्लैनेट भी आ गया, तो वी नो कि आपके रोमांटिक रिलेशनशिप भी ज़्यादा अच्छे से नहीं चलते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी जो है रिलेशन अच्छा नहीं चलता है, ब्रेकअप हो जाता है, प्लस आपकी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं जाती, प्लस आपका बचपन अच्छा नहीं गएगा, प्लस आपका कट्स एंड ब्रेक्स आए होंगे एजुकेशन में. 10th के बाद, +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप ईयर, कट्स एंड ब्रेक्स आएंगे, क्योंकि मरकरी बचपन भी है, मरकरी हमारी एजुकेशन भी है, मरकरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, मरकरी फ्रेंडशिप होती है. तो अगर मरकरी ख़राब है, ऐसे इंसान को ये प्रॉब्लम्स तो होगी, स्किन के भी इश्यूज़ आएंगे, एलर्जी के इश्यूज़ होंगे, अर्टिकेरिया जैसी बीमारियां, एक्ने, पिगमेंटेशन, स्किन का कोई भी डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम का कोई भी डिसऑर्डर, एंजाइटी इज अ नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर, ये चीज़ें होंगी. और इसकी रेमेडी पता है क्या है? इसकी रेमेडी है कि अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करें, तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपकी फ्रेंडशिप्स अच्छी हो जाएगी, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन अच्छा हो जाएगा, आप बचपन अपना फिर से जी पाएंगे. बचपन में ही यू बिकेम एन अडल्ट. तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा आपके चार्ट में होगा. पाइल नंबर 2 चेक करना है, दिख रहा है, कार्ड से ही दिख रहा है, क्योंकि ये आपके नेचर का पार्ट है, तभी ये कार्ड से दिख रहा है. वी हैव 8 ऑफ पेनिकल्स. तो 8 ऑफ पेनिकल्स इज गिविंग मी दिस मैसेज, भाई यू लाइक will have to work in the year 2026. You will work and you will get the sweet fruit of your hard work. ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते चले गए और कुछ भी नहीं हाथ लगा, नहीं. 8 ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज में कि आप मेहनत करेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे, दिल लगाकर काम करेंगे, डिटेल ओरिएंटेशन से काम करेंगे, और हो सकता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करें, या फिर आप अपनी बर्थ सिटी छोड़ एक डिफरेंट स्टेट या सिटी जाकर या डिफरेंट कंट्री जाकर मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, एजुकेशन परस्यू करेंगे, अगेन करियर परस्यू करेंगे, और आप जैसा स्किल सेट किसी और के पास नहीं होगा, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप काम करेंगे. ये वाली बात मैंने ना पाइल 1 में भी कही है, मतलब ये सभी पर ही एप्लीकेबल है अभी के टाइम पर. जैसे जस्ट अभी ही ना सन ने ट्रांजिट करा है कैप्रिकॉर्न में, तो जब भी सन ट्रांजिट करता है कैप्रिकॉर्न में, तो ये ट्रांजिट तो पूरी दुनिया के लिए ही है ना, तो एक धुन सवार हो जाती है हर किसी पर कि मेरे को काम करना है, मेरे को मेहनत करना है, मेरे को प्रोडक्टिव होना है. ये चीज़, ये धुन सवार हो जाती है हर किसी पर, क्योंकि सन हमारा नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर है. तो हर सोल के ऊपर कॉस्मोस का, यूनिवर्स का प्रभाव आता है. You are not alone. The universe, the cosmos is with you. You're going to notice अभी next 1 month पता है कैसा है, जहाँ पर आप बहुत काम करेंगे, बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे. अगर कोई आपका ऐसा काम था जो प्रैक्टिकल रियलिटी में आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे, बिकॉज यू वर फीलिंग लेजी, यू फेल्ट दैट मैं अभी मेरे को करना था पर मेरा मूड सा नहीं बन रहा है ना, तो आप सडनली अब महसूस कर रहे होंगे 1-2 दिन से पाइल नंबर, या 3-4 दिन से पाइल नंबर 2, कि अब आप ना उस काम को करना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिकल रियलिटी में करना शुरू कर देंगे. नेक्स्ट 1 मंथ आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे. नेक्स्ट 1 मंथ पूरी वर्ल्ड के लिए प्रोडक्टिविटी के होने वाले हैं, काम के होने वाले हैं. लोग आपके जीवन से गायब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग अपने कामों में व्यस्त होंगे और आप अपने कामों में व्यस्त हो गए. तो ऐसी एक धुन सवार होगी नेक्स्ट 1 मंथ, सभी के लिए है, सभी के लिए ही है ये. तो यहाँ पर विद द 8 ऑफ पेनिकल्स अगेन ये शो करता है 2026 इज द ईयर जहाँ पर आप पीछे नहीं देखोगे, पास्ट नहीं देखोगे, जहाँ पर आप प्रेजेंट में प्रेजेंट होगे. फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे. ऑफ कोर्स आप अपने गोल्स वगैरह तो बनाओगे ऑब्वियसली,
बट आप प्रेजेंट में बहुत प्रेजेंट रहोगे, बहुत टास्क ओरिएंटेड, बहुत गोल ओरिएंटेड, बहुत करियर ओरिएंटेड, स्किल सेट को हम कैसे और अच्छा कर सके ऐसे आप होगे, बहुत वर्क ओरिएंटेड रहोगे और प्रेजेंट में प्रेजेंट रहोगे। आप कहते हो कि कल का कल देखेंगे, आज हमारा अच्छा बीत गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कल का कल देखेंगे। यू आर गोना बिकम लाइक दिस 2026 में, ये चीज़ आपके लिए हो रही है। और आप अगेन अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ कर रहे हैं। यू आर गोना स्टार्ट थेरेपी और यू आर गोना start some physical exercise. You're going to change your homeopathy ayurvedic doctor. You may do some chanting of mantra or you start to do affirmations. मतलब आप effort कर रहे हैं एक healthy lifestyle के प्रति, healthy mental physical health के प्रति. We have moving forward. It says get ready for positive change. Absolutely yes. अभी जैसे हम यही बात कर रहे थे कि past की तरफ आपका ध्यान नहीं है, आप present पर focus कर रहे हैं और move forward करते चले जा रहे हैं। पीछे बार बार मुड़ के नहीं देखने वाले आप कि मेरे साथ ऐसा हो वैसा हो, नहीं, आप present में बहुत present रहेंगे। And it's the time is the year जहाँ पर आप ready हैं बदलाव के लिए, mentally, emotionally, physically you're going to be ready for this change। और आप forward movement अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। आप ये देखें कि ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं है, ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ रहा है और ये बदलाव अपने खुद के कर्मों कारण आ रहा है। आप ये नहीं देखें कि भाई मैं ये दशा रन कर रही हूँ, मैं वो प्लांटरी टाइम साइकिल रन कर रही हूँ, नहीं, ऑटोमेटिकली आपके मन में ऐसा होगा कि मेरे को ये चीज़ करनी है तो करनी है, चाहे कोई भी दशा चल रही हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, मेरे को ये चीज़ करनी है, ऐसा धुन सवार होगी आपके। देन वी हैव इल्यूजन, इट सेज एम्ब्रेस द ट्रूथ। तो कई इल्यूजन्स जो आपने अपने मन में पाल रखे थे, वो इल्यूजन्स को आप ख़त्म करते हैं एंड यू आर एम्ब्रेसिंग द ट्रूथ। आप ये नहीं सोचेंगे भाई 4 लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, नो, यू आर गोना बी लाइक वो 4 लोग भी, अब अक्षता ने कह दिया कि नेक्स्ट 1 मंथ काम का है, तो वो लोग भी 4 लोग अपने काम में व्यस्त और मस्त होंगे और मुझे भी अपने काम में मस्त और व्यस्त होना चाहिए। द वे यू गोना लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, ये वे चेंज हो रहा है। शायद जब आप अपने आप को मिरर में या कहीं पर भी देखते थे, शीशे में, किसी भी जगह पर आप अपने आप को शीशे में देखते थे, यू फेल्ट लाइक कि मैं पता नहीं थोड़ी और अगर सुंदर होती या और हैंडसम होता तो कितना अच्छा होता। बट नाउ व्हाट यू गोना फील, यू आर गोना फील, ओ आई लुक सो गुड, आई लुक सो ब्यूटिफुल, आई लुक सो हैंडसम, आई लुक सो चार्मिंग। हैंडसम और ब्यूटिफुल की कोई बात नहीं होती पाल्टू। मैं आपको हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान का। जो ऋतिक रोशन है, ब्लू आइज, गोरा रंग, अच्छे बाल, कर्ली हेयर, आई फील ही हैज़ कर्ली हेयर आई थिंक, और क्या कहें, बॉडी वाइज भी, बॉडी स्ट्रक्चर वाइज भी, और मतलब हर वे में अच्छा दिखता है ऋतिक रोशन, कोई उसमें बुराई नहीं है। बट उसी तरफ हम अगर अपने 90s में हम इन दोनों को देखें तो एक जो शाहरुख खान है, उनका कुछ स्क्रीन प्रेजेंस कुछ और ही था, जबकि ऋतिक रोशन वॉज मोर हैंडसम। शाहरुख खान की जो नोज़ की शेप है, बहुत मतलब आई वोंट से कि ही इज़ अ हैंडसम पर्सन, बट आई वुड से ही इज़ अ चार्मिंग पर्सन। व्हेन एवर ही कम्स ऑन द स्क्रीन तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस दिखता है। उसी तरह धर्मेंद्र जी, हमारे 70s 80s के हीरो, वो यू कैन सी कितना उनका स्क्रीन प्रेजेंस है, कितना ही, मतलब वो जब स्क्रीन पर आते हैं इट्स लाइक कि ओ माय गॉड, सच अ चार्मिंग पर्सन, सच अ चार्मिंग पर्सन। पहले चॉकलेट बॉयज़ का ऐसा होता था कि सॉफ्ट जो दिखता हो, बट देन धर्मेंद्र जी केम इन एंड उसके बाद माचो काइंड ऑफ पर्सनैलिटी को लोग ज़्यादा अच्छा मानने लगे। तो मतलब जो ऐसा पर्सन जो लोगों का पर्सपेक्टिव ही बदल दे अपने चार्म से, अपने चाल ढाल हाव भाव से, ये पावर की बात होती है। जो तो देखिए, जो भगवान ने बनाया वो तो बनाया ही है ना। ब्यूटी तो वैसे भी ढल जाती है समय के साथ, उम्र के साथ, बट जो चार्म होता है ना वो बढ़ता ही चला जाता है। तो वो चार्म आपका नजर आ रहा है विद द इल्यूजन कार्ड, देयर इज दिस चार्म। यू मे नॉट हैव द बेस्ट परफेक्ट नोज, यू मे नॉट हैव very beautiful eyes, you may not have plump lips, but the way you're gonna look, it's gonna be so charming, so attractive कि लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जब आप भी अपने आप को चेहरा अपना देखेंगे शीशे में, आप कहेंगे कि अरे भगवान ने बनाया तो मुझे बड़ा फुर्सत से बनाया है। कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे। और ये कहने की बात होती है कि भाई ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप जैसे मर्जी दिखते हो सब चलता है, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि लोग सबसे पहले आपके कपड़ों को, आपको नोटिस करते हैं,
ये सच है, ना चाहते हुए भी ये बात सच है. तो व्हाट आई सी इन 2026 दैट एवरी डे यू आर वेयरिंग बेस्ट क्लोथ्स, बेस्टेस्ट क्लोथ्स. हो सकता है एक रात पहले अपने कपड़े आप डिसाइड करके रख लेते होगे कि अगले दिन मैंने ये पहनना है. बिकॉज यू नेवर नो, इफ़ यू आर लाइक, इवन इफ यू आर गोइंग टू द डॉक्टर्स ऑफिस, यू नेवर नो हु यू आर गोना मीट. लेट्स से यू आर अबाउट टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ, और आपने क्या पहन रखा है, एक ढीला ढाला पजामा और एक घिसी हुई टी शर्ट. क्या इम्पैक्ट आएगा? इवन दो वो आपका एक रोमांटिक पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, पहले दिन आप उससे ऐसे मिले हो, तो यादगार तो होना चाहिए ना. मज़ा तभी आए जब चीज़ें यादगार बने. तो हर रोज़ ऐसे मतलब आप बाहर निकलिए, चाहे आप डॉक्टर के पास ही क्यों ना जा रहे हो, अपने बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहन के जाइए. आप खुद अच्छा फील करना शुरू करेंगे. एंड व्हेन यू लुक गुड, यू विल फील गुड. अगेन आई अग्री कि ये फॉर्मूला हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं है. इफ़ यू लुक गुड यू विल फील गुड, ये यूजुअली सन वीनस वाले कंजंक्शन वाले लोगों पर एप्लीकेबल होता है ये फॉर्मूला. या वीनस अगर आपका आत्मा कारक है तब ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है, या वीनस जब असेंडेंट में होगा तब ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होगा. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट, पाइल नंबर 2, व्हाट आई सी इज कि आप टिप टॉप बन के रहने वाले हैं. लाइक वी सी दिस पर्सन इज इन द स्ट्रीट. This person is literally in the streets right now. This person is wearing a gown. Whereas these people, they are not royal people. This is a royal princess. And the others are not royal. But she is not leaving her royalty, even though she is in the streets. चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हो, बहुत वेल ड्रेस होकर जा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंट भी आप फील करते हैं और बहुत चार्मिंग आप नज़र आ रहे हैं, बहुत चार्मिंग. सडनली आपका फैशन सेंस और अच्छा होने वाला है. यू कैन लिव योर लाइफ इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर नाउ. एक रॉयल तरीके से आप जीने वाले. देन वी हैव मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस. एब्सोल्युटली है. जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, तो आपका वीनस इंप्रूव होता है. वीनस पैसों को रिप्रेजेंट करता है, तो और पैसे भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो. बिकम अ मनी मैग्नेट. मनी कम्स टू यू ईजी. तो मनी आ रहा है तो मनी कार्ड आया तो डेफिनेटली पैसों की अगर आप समस्या से डील कर रहे थे तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है. मनी वाइज स्टेबिलिटी जीवन में आने लगेगी. पैसे ईजिली आप अर्न कर पाएंगे. यू विल नोटिस दैट मनी इज़ कमिंग ईजी टू मी. Many of you may even become a makeup artist, tattoo artist, hair stylist, कुछ creative फैशन ब्यूटी डिज़ाइनिंग वाले फील्ड में आप जा रहे हैं. मैनी ऑफ यू. देन वी हैव मर्करी. इट सेज मैसेजेस. तो मर्करी की हम अभी बात भी कर रहे थे कि मर्करी राहु या मार्स के ट्राइन में होगा, या इन दोनों यही प्लांट्स राहु और मार्स जो हैं मर्करी के ट्राइन में होंगे, है ना. तो मर्करी कार्ड आ गया, मर्करी प्लानट आ गया. तो मर्करी इज़ ऑल्सो अबाउट सोशल मीडिया. सो मैनी ऑफ यू कैन बिकम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और विल बिकम वेरी सीरियस अबाउट क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया, विल बी क्वाइट डिसिप्लिन अबाउट इट. सो मर्करी मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. मर्करी मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि यही शो करता है कि भाई हाँ आप सोशल मीडिया पर नेम एंड फेम पाएंगे. एंड ऑल्सो मैनी ऑफ यू मे गेट अ पेट डॉग और अ कैट, या आपके अड़ोसी पड़ोसी पेट डॉग या कैट लेकर आएंगे. हो सकता है वो एक शिज़ू हो, लेब्राडोर हो, जो मतलब ऐसी ब्रीड्स जो बहुत फ्रेंडली होती है. ऑल राइट, गोल्डन रिट्रीवर. और इट कैन इवन भी कि आपको कोई गली में ही जो है अपने मिल जाता है डॉग कैट जो बहुत फ्रेंडली नेचर का हो. कैट्स यूजुअली आर नॉट दैट फ्रेंडली, बट मे बी यू विल फाइंड अ फ्रेंडली कैट. Then we have 9th house. It says exploration. So 9th house is about wisdom, knowledge. Again, Mercury खुद, जिसका Mercury ascendant में होता है ना, ये मत सोचो कि उसको कुछ आता नहीं होगा क्योंकि मरकरी है, आधी अधूरी नॉलेज होगी. नहीं, मरकरी भी ज्ञान का कारक है. मरकरी, वीनस और जुपिटर ये तीनों ज्ञानी प्लैनेट्स हैं. तो जिसका मरकरी असेंडेंट में होता है, दे विल हैव डीप नॉलेज अबाउट सम सब्जेक्ट, डीप नॉलेज. एंड दीज पीपल वांट टू अटेन मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर नॉलेज. सो ये न्यूज़पेपर रीड करते हुए आपको मिल जाएंगे, न्यूज़ रीड करते हुए मिल जाएंगे, या न्यूज़ सुनते होंगे देश विदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ऐसे लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है. तो इवन अगेन दोनों ही यहाँ पर, चाहे मरकरी है चाहे 9th हाउस है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन के कारक आ गए हैं. तो इट डज शोज कि 2026 इज गोना बी द ईयर वे आर गोना बी वेल इन्फॉर्म्ड कि दुनिया में ये चल रहा है, इस चीज़ में ऐसा है. किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज आपको ज़रूर होगा, है ना. यू विल डू सम पिलग्रमेज ट्रैवल इन 2026. यू विल मीट सम गुरु मेंटोर. आप हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग करते हुए नजर आ रहे, किसी क्लास में, किसी कोर्स में अपने आप को इनरोल कराएंगे. 9th हाउस ऑल्सो फादर. सो फादर को प्रमोशन मिले, फादर के जीवन में कुछ अच्छा है, फादर के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, फादर की हेल्थ अच्छी चलेगी, ये यहाँ पर दिख रहा है.
कोई गुरु मेंटोर आपको मिलेंगे जो आपके फादर जैसे होंगे, एक अच्छे फादरली फिगर होंगे. वी हैव द शी ऑफ द वुड्स, इट सेज पीस, कनेक्शन, होम. यू गोना फील एट होम. You're not going to feel uncomfortable in the year 2026. The biggest change you're going to experience is that you're going to be comfortable in your skin. You're going to be comfortable wherever you are. You are going to feel, wherever you're going to be, you will feel that yes, I belong here. So you will feel at ease, you will feel comfortable. Again, मरकरी की डिजीज से आपको डील करना पड़ सकता है. पाइल नंबर 2 शायद आप ऑलरेडी कर भी रहे हो उससे डील. मरकरी स्किन के इश्यूज लेकर आता है, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स लेकर आता है. एंजाइटीज है नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर. और इवन जैसे अर्टिकेरिया है, इची स्किन है, रैशेस हो जाना बॉडी पर, एलर्जीज, ये मरकरी लेकर आता है ना. तो कहीं ना कहीं जब मरकरी ख़राब होता है, राहु केतु से पीड़ित होता है, ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति और इस पर्सन का बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, जिस कारण इसको हेयर फॉल से रिलेटेड इश्यूज ऐसे पर्सन को होते ही होते हैं. ब्रिटल नेल्स, क्योंकि अब बॉडी को ऐसा लगता है कि मैं हूँ खतरे में, तो मेरे को अपने जो ऑर्गन्स हैं, जो है ऐसे ऑर्गन्स जो इम्पॉर्टेंट है, बस उसी में मेरे को अच्छे से ब्लड सप्लाई करना है, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है. तो फिर बाकी जो जैसे हेयर है वो तो बॉडी इतना ज़्यादा फिर उसको देगी नहीं, तो बाल तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे. ऑल्दो और ग्रो भी होंगे पर झड़ेंगे बेशक, ये होगा ही. तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को सालों से हेयर फॉल का इशू, और आप हर चीज़ ट्राई कर चुके हो पर बाल नहीं बचने को आ रहे. और इस वजह से आप दवाइयाँ खा भी लोगे ना तो शायद कुछ 19-21 का फ़र्क आ जाए, पर ये प्रॉब्लम आपकी रहेगी जब तक कि आप अपने आप को ये ना कहो कि मैं सेफ़ हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं सेफ़ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे मेरे पे कोई हमला नहीं कर रहा है, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, सभी मुझे पसंद करते हैं, सभी मुझसे प्यार करते हैं, सभी मेरे अपने हैं. तो जब आपको ये फील हो ना सभी से एक अपनापन, चाहे आपको फील ना भी होता हो पर आप फील कराने लग जाओ कि हाँ सभी मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है, तो आपका मरकरी हील होना शुरू हो जाता है, आपका इनर चाइल्ड हील होना शुरू हो जाता है. आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड से उस मोड से बाहर आना शुरू हो जाती है, नॉर्मल होना शुरू हो जाती है. हैंस आपके बाल भी बच जाएंगे, आपका वो एलर्जी भी कम हो जाएगी, आपको स्किन का इशू भी कम हो जाएगा. नर्वस सिस्टम से रिलेट कोई भी इशू हो, नर्व से रिलेट कोई भी इशू हो, चाहे नस पे नस चढ़ जाना होता है या वेरिकोस वेन्स का इशू हो जाता है ना, तो ये सब कंट्रोल आ जाएगा आपका. तो ये आपके लिए गाइडेंस है. इनफैक्ट जैसा हम शुरू में ही कह रहे हैं कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बहुत फोकस करने वाले हैं 2026 में. अपने आप को सेफ फील कराएंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर लेंगे, फिट फाइन नज़र आ रहे हैं 2026 में, क्योंकि एफर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में. आप लोगों से आप एक पीसफुल कनेक्शन बना पाएंगे. एनिमीज जीवन से जा रहे हैं फाइनली. देन वी हैव द एंशंट नॉलेज, इट सेज हेल्प डायमेंशनल. एब्सोल्युटली यस. 9th हाउस जुपिटर का हाउस होता है. जुपिटर एंशंट नॉलेज मतलब हमारे वेदास, उपनिषद्स, वेदांतिक टेक्स्ट, इसको रिप्रेजेंट करता है ना. तो एंशंट नॉलेज आप लेते हुए नजर आए. मेनी ऑफ यू आर स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, नक्षत्रस. Many of you are studying about acupuncture, acupressure, Chinese medicine. Many of you are actually learning about the old science, will study about history में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप रखने वाले हैं, है ना. ये चीज़ें आपके लिए ऐसा नज़र आ रही है. मेडिटेशन आप करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, अपनी भी मदद करेंगे इस नॉलेज से, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव क्लेंजिंग टू द पास्ट. एब्सोल्युटली यस. अभी हम जैसे शुरू से ही हम ये बात कर रहे हैं कि 2026 ये ईयर ऐसा है जहाँ पर आप फॉरवर्ड मूव करेंगे. आप पास्ट के बारे में ना सोच प्रेजेंट में रहेंगे. अपने गोल्स के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं पर प्रेजेंट में बहुत प्रेजेंट रहेंगे. आपकी प्रॉब्लम जो पास्ट, जो बहुत सालों से आपकी एक आदत है पाइल 2, और वो यही है कि यू क्लिंच टू द पास्ट लाइक नो अदर. लाइक यू आर समवन जो पास्ट के बारे में बहुत सोचता है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसने मेरे, स्पेशली द नेगेटिव थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट, यू रिमेंबर इट वेरी क्लियरली. अगेन भरणी नक्षत्र कैन बी वेरी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारक प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट वो भरणी नक्षत्र में होगा, एरीज साइन में होगा. एरीज में भरणी नक्षत्र आता है, या फिर पाइसीज में रेवती नक्षत्र में जो है आपका सन मून राइजिंग आत्मा कारक प्लानट लगन लॉर्ड होगा. क्योंकि रेवती और भरणी बोथ आर द नक्षत्रास अबाउट एलिफेंट्स. एलिफेंट हैव वेरी गुड मेमोरी, है ना. तो
वही है कि स्पेशली नेगेटिव थिंग्स ऑफ द पास्ट आपको बहुत याद रहती है, और व्हेन यू गोना टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स ऑफ द पास्ट इन द प्रेजेंट, उस दिन तो आपको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स से भी डील करना पड़ेगा. तो प्रॉब्लम ही आपका जीवन का ये है कि आप सोचते ही बहुत, और सोचते क्या, और नेगेटिव चीज़ों के बारे में जो पास्ट में हुई. व्हाट आई सी इज 2026 में आप इस चीज़ से मूव ऑन कर जाते हो. ये जो आपने बक्सा अपने सर पर डाला हुआ है ना पास्ट का, इसको आप अपने सर से उतारते हो, एंड यू रियलाइज कि ओ माई गॉड, व्हाट वाज आई इवन थिंकिंग, क्या कर रहा था मैं या क्या कर रही थी मैं. आपको ये फीलिंग आई कि मैंने कितना समय तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया उन चीज़ों के बारे में सोच के जो हो ही चुकी हैं. तो 2026 इज गोना बी द ईयर ऑफ चेंज, जहाँ पर मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपका बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा. आप अपनी सोच के डब्बे से, अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे. ऑल राइट. और ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देने वाली है 2026 में. गुड हेल्थ, गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, करियर, बहुत अच्छा मनी, है ना. ये नया फ्रेंड सर्कल जो है लाइफ इज़ गोना गिव यू, है ना. एंड यू गोना फील दैट यस आई बिलोंग हियर. यू विल फील मोर पीसफुल, यू विल फील एट ईज, यू विल फील लाइक कि ये तो फीलिंग मैंने पहले कभी ली ही नहीं, कि आई एम एट ईज, आई एम एट पीस, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग टू मी, एवरीथिंग इज़ कमिंग टू मी वेरी ईजिली, आई एम अबंडेंट, तन मन धन जन का सुख है मेरे को. तो ऐसी फीलिंग आप फील करने वाले हो, ऐसा फील करोगे 2026 में. सो दैट्स वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. तो जैसे न्यू मून का कार्ड आपने चाहे पिक करा हो या जैसे भी इस फाइल को पिक करा हो, न्यू मून रिप्रेजेंट्स एक नया फेज जीवन में शुरू होता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल. मून हमारे मानस, हमारे मन, हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो वही है कि आपका सोच विचार करने का तरीका बदल रहा है 2026 में. यू विल फाइंड पॉजिटिविटी इवन इन द नेगेटिव सिचुएशंस. दिस इज समथिंग विच आई सी फॉर यू. So yeah, that was pretty much it for your pile number 2. Astrologically देखें तो मून, मर्करी, जुपिटर या वीनस, इनमें से एक प्लानट आपका आत्मा कारक प्लानट होगा. प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट सिग्निफाइंग यू, रिप्रेजेंटिंग यू. ऑलराइट. वर्गो साइन हो गया, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, एरीज, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में भी हैव अश्विनी, भरणी, कृत्तिका. फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा. और स्पाइसीज में भी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. एंड मैं कहूँगी कि अगेन सेजिटेरियस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. 1st, 6th, 9th, 12th हाउसेज में आपके कोई ना कोई प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. सन मून राइजिंग आत्मकार का असेंडेंट लॉर्ड, कोई ना कोई प्लांट जरूर प्लेस्ड होगा. D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में इन साइंस इन हाउसेज में. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the lotus flower. It says unfoldment, or you picked this file because आपका जो बर्थडे है वो 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. व्हाट्स द बिगेस्ट चेंज दैट यू विल एक्सपीरियंस दिस ईयर 2026 में? वो क्या बड़ा बदलाव है जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ जीवन में, पहले कभी आप उससे गो थ्रू नहीं हुए हैं. ओके. We have the Queen of Wheels, which is basically Queen of Pentacles. Oh my God, you're becoming a wealthy lady. Not a wealthy man, wealthy lady. Even if you're a male watching this reading, मतलब ये gender based नहीं है obviously ये reading. तो आप male हैं, female है, whatever it is, you're becoming a wealthy female. मतलब आप, मैंने पहले भी बताई है ये चीज़ कि एक फीमेल का तरीका कुछ और होता है पैसे खर्च करने का. वो अपने कहीं ना कहीं अपने कपड़ों पर, अपने बालों पर, अपने घर पर, गाड़ी पर भी, घर पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं पैसे, समय, एनर्जी. जब घर हमारे अकॉर्डिंग होते हैं ना, घर को हम डेकोरेट अपने अकॉर्डिंग करें, तो एक निश्चिंतता या एक बिलोंगिंगनेस हम फिर उस घर से फील करने लग जाते हैं. इस वजह से कहते हैं कि घर को डेकोरेट करके रखना इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स अस फील दैट येस वी बिलोंग हियर. क्योंकि ये हमारी सोच विचार अकॉर्डिंग हमने इसको डेकोरेट करा है, या हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है कि हाँ इस जगह पर मेरा राज चलेगा क्योंकि मेरा है ये,
है ना। तो उसी तरीके से व्हाट आई सी इज 2026 में चीज़ें आप अकॉर्डिंग चलेगी, आप चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, लोग आपकी ज़्यादा सुनेंगे, बिकॉज दिस इज अ क्वीन ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ व्हील्स। तो रानी है ना, क्वीन बी, यू आर गोना बी द क्वीन बी एंड दे आर गोना बी वर्कर्स बी अंडर यू, और वो आपके बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे, आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपको अच्छे सर्वेंट मिलेंगे 2026 में। इफ़ यू वर समवन जो बहुत तंग था कि हमारी तो मेड, हमारे जो हाउस हेल्प है बड़ी छुट्टियां मारते हैं, ऐसा है वैसा है, 2026 में आपको हाउस हेल्प्स मिलेंगी। चली भी जाती है फिर नहीं आ जाएगी, पर मिलेंगी, आपके घर पर हाउस हेल्प होगी। तो ये हाउस वाइफ्स के लिए तो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल कहें गुड न्यूज़ है ये। तो वीनस सैटर्न का जब कंजंक्शन होता है, स्पेशली वीनस के आगे जब सैटर्न होता है, ऐसी फीमेल जो है बहुत करियर ओरिएंटेड होती है, वर्क ओरिएंटेड होती है, और ये लोग हाउस हेल्प के भी, इनकी जीवन ना बंधी होती है हाउस हेल्प के साथ, कि आज मेड आई है, इससे ये कराना है, हाउस हेल्प से ये कराना है, वो कराना है। जब वीनस के आगे सैटर्न होता है तो समहाउ एक फ़ीमेल की ज़िंदगी अपने नौकर के साथ ज़्यादा बंध जाती है, कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, मन में यही चलता है कि उससे ये काम कराना है, वो काम कराना है, क्योंकि खुद हो नहीं रहा ना वो काम, क्योंकि वीनस एक फ़ीमेल है, और फीमेल के चार्ट में वीनस उसी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ये चार्ट है, और सैटर्न नौकर है। तो और सैटर्न मैच्योरिटी है, सैटर्न हेल्थ इश्यूज़ है। तो ऐसी फीमेल को जो है हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम या मसल्स में इंजरी हो जाना, ओल्ड फील करना बॉडी को ज़्यादा जल्दी, उम्र से ज़्यादा जल्दी बॉडी जो है ओल्ड हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो ज़्यादा काम नहीं होता है ना। तो हाउस हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, वो खुद से नहीं कर पाती हैं। तो फिर हम कह सकते हैं आधा जीवन तो फिर मेड के साथ ही बीत जाता है, यही कहें तो भारत में तो यही रियलिटी है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट शोज़ में कि अच्छी हाउस हेल्प्स मिलेगी। क्वीन ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ पेनिकल शोज़ में कि आप अपने घर पर बहुत अपना समय और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, नया फर्नीचर आएगा आपके घर 2026 में, पेंट वगैरह होगा, रेनोवेशन होगी 2026 में आपके घर में, किचन एरिया को बहुत अच्छे से रेनोवेट आप करने वाले हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। या आप एक ऐसे घर में शिफ्ट हो जाए जिसका किचन एरिया बड़ा है, ओपन किचन है, ऑलराइट, आराम से, मतलब हर चीज़ किचन में अवेलेबल है, मतलब किचन की जैसे सिंक बड़ी है, मैं ज़्यादा तो क्या ही बताऊँ, ईज़िली मतलब काम वहाँ पर हम कर सकते हैं, सुविधाएं हैं घर में, है ना, ये सुख सुविधाएं हैं जीवन में। तो ऐसा दिख रहा है। गाड़ियाँ, अगेन यू में बाय अ कार, कौन सी कार, सेडान खरीदेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। सम ऑफ यू में इवन बाय एन SUV, बट सम ऑफ यू, मेनी ऑफ यू विल बाय सेडान, इवन दो सेडान का इतना अब है नहीं ट्रेंड, ज़्यादातर लोग SUV लेते हैं। और आई डू फील पाइल नंबर 3 यू गाइज आर गोना बाय सेडान, इट कैन बी फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, व्हाटएवर, बट यू विल गेट अ सेडान। सम ऑफ यू मे गेट SUV। अगर आपके चार्ट में वीनस राहु का कंजंक्शन है, वीनस राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, या राहु का ट्रांजिट आपके वीनस के ऊपर हुआ है, तो आप एक SUV खरीदोगे और सडनली आपके पास पैसे आएंगे मैरिज के बाद। या अगर राहु का ट्रांजिट वीनस के ऊपर होता है तो सडनली पैसे आएंगे उस समय पर आपके पास। और इवन जैसे वीनस अगर केतु के ट्राइन में है, वीनस केतु का कंजंक्शन है, तो आप सेडान खरीदेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन होता है गाड़ियों के भी। और फिर यहाँ पर जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये शो करता है अपने शौक पर पैसे खर्च करने वाले हैं, नया हारमोनियम, नया गिटार, नई सितार, नई फ्लूट खरीदेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स नया ड्रम सेट खरीद सकते हैं, है ना। क्रिएटिविटी पर पैसे खर्च करेंगे, क्रिएटिव चीज़ें करने वाले हैं, क्रिएटिव हॉबीज़ को परज्यू करेंगे, कैरियोके गाएंगे, डांस क्लास जाएंगे, डांस करेंगे, पेंटिंग करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, कैलीग्राफी करेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी पर टाइम और मनी आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है आपका रेप्यूटेशन सोसाइटी में बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। पीपल फील दैट पाइल 3 इज हैविंग फन इन देयर लाइफ एंड दे आर फन पीपल, दे आर मेच्योर। देखिए, सच्चा मेच्योर पर्सन वही है जो हंसता रहता है, जो मुस्कुराता रहता है, जो अपनी मस्ती में रहता है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे इक्वेशन जैसी भी हो किसी के साथ आपकी, पर आपका पीस ऑफ माइंड नहीं डिस्टर्ब होता, आपको गुस्सा नहीं आता, आप खुश रहते हैं चाहे कुछ भी हो। इसको कहते हैं सच्ची मैच्योरिटी, इसको कहते हैं सच्चा राजसी जीवन। राजा तो वो ना जो बिल्कुल बेपरवाह बादशाह, वही तो सच्चा राजा ना जो बेपरवाह बादशाह है।
अगर आपको बादशाही मिलती है, आपको सीट ऑफ पावर मिलती है और आप आ जाते हैं टेंशन में, तो इसको तो बादशाही नहीं कहेंगे, इसको तो राजा बनना नहीं कहेंगे, इसको तो कहेंगे यू हैव बिकम अ स्लेव। अगर आप किसी की तारीफ से खुश और उसकी निंदा से परेशान हो जाते हैं तो इसको तो यही कहेंगे यू आर अ स्लेव टू दैट पर्सन्स और टू पीपल्स ओपिनियन, यू आर अ स्लेव, है ना। वेयर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स इन सभी चीज़ों से हमें पार लेकर जाता है। इट टेल्स यहाँ पर 2026 में पाइल नंबर 3, यू गाइज आर गोना बी द पीपल हु विल नॉट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। आप अपनी मस्ती में रहेंगे, काम भी करेंगे नो डाउट, पर आप वो अपने लिए समय भी निकालेंगे जहाँ पर आप मस्ती करेंगे, इन्जॉय करेंगे, बिकॉज आपको ये रियलाइज़ हो चुका है पाइल नंबर 3 या अभी होगा 2026 में रियलाइज़ कि मैंने पलक झपकाती 5 साल मेरे बीत गए, 5 साल अगर और बीत जाएंगे, मैं एक बार फिर पलक झपका दूंगा तो मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा या मेरी तो उम्र ही बीत जाएगी या समय बीत जाएगा कितनी जल्दी। तो अब मेरे को जो है हर सेकंड बहुत खुशी से जीना है, हर सेकंड मेरे को खुशियाँ मनानी है, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना खुशी का, सेलिब्रेशन का। मैंने अगर कोई मेरे को पार्टी सेलिब्रेशन में बुलाता है तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी ही, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं तैयार होंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगा या पहनूंगी, लोगों से मिलूंगी। अगर लोगों की मेरे को कोई बात नहीं भी अच्छी लगती तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा या कर दूंगी, है ना। इसको कहते हैं सच्ची मैच्योरिटी। तो आप ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओ माय गॉड, भाई जीवन जीना हो तो पाइल 3 से सीखो। पाइल 3 नोज हाउ टू लिव लाइफ। तो 2026 में पाइल 3 आप कुछ क्रिएटिव सीखेंगे भी। ऑलराइट, इट कैन लिटरली बी यू मे जॉइन सम कोर्स जो कि म्यूजिक, डांस, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, या मे बी एस्ट्रोलॉजी कैन बी योर पैशन, टैरो कैन बी योर पैशन, तो आप इसको सीख रहे हैं। या फिर आपको कोई बच्चा मिले और वो बच्चा आपको सिखाता है कि जीवन ऐसे जीते हैं। यू नो, रिसेंट टाइम्स में आई मेट वन ऑफ माई कज़न्स। वो मेरी कज़न 4-5 साल की है। वो उसी स्कूल में जाती है जिस स्कूल में मैं पहले जाती थी। तो अब थोड़ा एजुकेशन बदल गया है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है, मैंने उससे सुना। तो वो मेरे से दूसरी बार मिली थी, अभी लोहड़ी थी ना, लोहड़ी का सेलिब्रेशन था, पार्टी थी, तो मैं अपने रिश्तेदार में गई थी, ऐसे रिश्तेदार के घर गई थी, उनका पहली लोहड़ी थी। मैंने बताया भी था मैं दिसंबर में एक शादी अटेंड करके आई हूँ, तो वही न्यूली वेड जो थे उनका पहली लोहड़ी है। तो वहाँ पर मेरी एक कज़न भी है छोटी, 4-5 ईयर्स ओल्ड। तो वो बच्चा, मैं कहूँ कि शी टॉट मी हाउ टू लिव लाइफ। वो मेरे से पूरे टाइम वो और मैं बातें करते रहे और ड्राइंग करते रहे। हमने लोहड़ी सेलिब्रेशन का पिक्चर बनाया, ड्रॉ करा। वो पहले भी मेरे घर आई थी और हमने इकट्ठे ड्राइंग करी थी। हम दोनों ड्राइंग करते हैं जब भी मिलते हैं। तो दूसरी बारी मैं उससे मिली हूँ, हमने तब भी ड्राइंग करी। फिर वो मेरे को मेकअप वीडियोस दिखा रही थी दीदी ये देखो, ये मेकअप वीडियो देखो, इसने लिपस्टिक लगाई है, फिर इसने पाउडर लगा लिया, इससे लिपस्टिक ज़्यादा स्टे कर जाएगी। मतलब हम ऐसे देख रहे थे। तो मैंने कहा ये होता है जीवन। तो बच्चा है, स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसको भी पता है मेकअप ये होता है। उसने खुद ब्लश अपने लिपस्टिक लगाई थी, मम्मी ने उसके जो है आई शेडो लगाया था, तैयार हुई थी वो। तो इनफैक्ट उसने सूट पहना हुआ था और बालों में जो है क्या कहते हैं उसको, बालों में भी कुछ बांधा हुआ था, मैं नाम भूल गई, क्या परांदा बांधा हुआ था। मैं तो खैर अपने पैंट शर्ट में गई थी, मैंने जैकेट भी ली हुई थी, मेरे को तो ठंड ज़्यादा ही लगती है। तो वो अपने पूरे फैशन उसने करे हुए, सॉक्स भी नहीं डाली हुई। तो आई वाज लाइक कि ऐसे लोहड़ी सेलिब्रेट होती है, ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। अक्षता तेरे को तो तैयार होना ही नहीं आता है, ये बच्चे से सीख। तो यू नो, अ चाइल्ड कैन इवन टेल यू दैट दिस इज हाउ यू नीड टू लिव लाइफ, दिस इज हाउ यू नीड टू लिव लाइफ। तो अब ये पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बच्चे को ही तो रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक शौकीन बच्चा, क्योंकि वॉन्ड शौकियापन है, पैशन है। और आजकल के बच्चे हैं भी थोड़ा तेज़, बिकॉज मेच्योर सोल है, हर सोल के एक वानप्रस्थ अवस्था आ गई है। तो इस सोल ने भी बहुत सारे लाइफ टाइम्स जिए हैं। शी हैज़ हर ओन थॉट प्रोसेस और हर ओन माइंड सेट, उस टाइप का बच्चा है वो। तो अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स यही है कि आप एक बच्चे से इंस्पायर हो गए। हो सकता है पाइल नंबर 3 आप यू कैन बी अ 50-year-old पर्सन और आप मेरी रीडिंग सुनते हो तो
मेरी उम्र तो आपसे बहुत कम है, तो आप मुझसे इंस्पायर हो जाते हो, दिस कैन इवन हैपन। और आप देखेंगे कि 2026 में 6 में आपको यूथ की मिलेगी, यूथ से आप इंस्पायर होंगे, यूथ के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, उठना बैठना आपका यूथ के साथ होगा, तो यंग लोगों के साथ आप उठना बैठना करेंगे तो आपके अंदर भी एक उमंग उत्साह जागेगा। सम ऑफ यू में इवन गो इनटू टीचिंग जॉब, तो स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाते हैं तो अगेन यूथ से आप कनेक्ट होते हैं, यूथ में एक अलग ही उमंग उत्साह होता है, वो उमंग उत्साह आप भी एब्जॉर्ब करने वाले हैं, है ना। और ज़िंदगी जीने की इच्छा और आपकी बढ़ती है कि हर रोज़ मेरे को कुछ ना कुछ करना है, क्रिएटिव करना है, अपनी खुशी के लिए करना है। तो ऐसा आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी बच्चे से आपकी बहुत ज़्यादा जो है अटैचमेंट तो नहीं, किसी बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार, उससे बहुत स्नेह आपका बढ़ेगा, है ना। रिसेंट टाइम में ऑल्सो मेट अ 15 ईयर ओल्ड, तो उससे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब यूजुअली आई एम सराउंडेड विद ओल्ड पीपल, बट इन 2026 आई गॉट अ चांस टू बी विद यूथ एंड आई रियलाइज कि कितना अच्छा है, मतलब यूथ के साथ बातें करते हैं। बट दैट अगेन मेरे को ऐसा फील होता है कि यूथ इज़ सो मैच्योर। हम उस एज में जब थे तो हम नहीं थे ऐसे, तो आज के डेट में तो यूथ भी बहुत मैच्योर है। वी हैव 9 ऑफ कप्स कार्ड। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो करता है कि आप खुश रहने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स ये शो करता है दैट यू आर गोना गेट, यू विल अचीव समथिंग, कोई अवार्ड रिवॉर्ड अचीवमेंट मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। यू विल फील दैट येस दिस इज़ कप ऑफ माई टी, या फिर दिस इज़ पीस ऑफ केक फॉर मी, दिस इज़ ईजी फॉर मी, या आई बिलोंग हेयर। आप एक बिलोंगिंगनेस फील करेंगे। पहले शायद आपको लगता था आई डोंट बिलोंग हेयर, आई डोंट बिलोंग इन दैट प्लेस, आई एम अनेबल टू जेल अप विद दीज पीपल और दैट काइंड ऑफ ग्रुप आई एम अनेबल टू जेल अप विद द 9 ऑफ कप्स। व्हाट आई सी इज वेयर एवर यू आर गोना गो, यू आर गोना फील दैट येस आई बिलोंग हेयर। आप जिन भी लोगों से मिलोगे उन लोगों से आपको ऐसा फील होगा कि इसकी ये बात भी मुझसे मिलती है, वो बात भी मुझसे मिलती है। यू विल फील दैट हमारा एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे जो आपके पास से कनेक्टेड होंगे, आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होंगे। उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ बात करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। 9 ऑफ कप्स ये शो करता है कि कोई अवार्ड रिवॉर्ड अचीवमेंट नेम फेम भी आपको मिलेगा अपने करियर में, है ना, लाइफ में इन जनरल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट विद द टेरो हेयर, मतलब और कार्ड भी हम पुल करेंगे बट टेरो में हमारा ये लास्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। व्हील ऑफ फॉर्चून हेयर शोज की पहले शायद आप ये थे पाइल नंबर 3, अब आप ये रंग बिरंगे इंसान हो गए हैं, अब एक रंगीन मिजाज के इंसान हो गए। यू हैव बिकम क्वाइट रोमांटिक, यू आर गोना रोमांटिसाइज योर लाइफ, येस यू आर गोना स्टार्ट टू बिलीव दैट येस लव एग्जिस्ट, फेरी टेल्स एग्जिस्ट। तो ऐसे जो गीत होते हैं जो प्यार के बारे में है, मोहब्बत के बारे में, पहले आपको लगता था दे आर सो क्रिंजी, ओ माय गॉड, बट नाउ यू विल बी लाइक नो, दिस इज ग्रेट, I want to believe in love. I want to believe that yes, there are good people, and you will find good people actually. Life is going to make you realize that there are good people around you. There are good people in the world. और यही अच्छे लोगों ने इस धरती को जो है लिवेबल बनाया हुआ है। इन्हीं लोगों के कारण धरती अभी भी अच्छी स्थिति में है। कुछ देखिए, हर कोई बुरा नहीं होता पाइल 3, हर कोई बुरा नहीं है। हम कह देते हैं कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, बट इस दुनिया में भी अच्छे लोग आपको मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। और कुछ ही लोग होते हैं जो कलेशी और तंग करने वाले होते हैं, टांग खींचने वाले होते हैं। कोई अच्छा वाला चल रहा है उसकी भी टांग अड़ा देंगे और उसे गिरा देंगे। ऐसे होते हैं लोग, बट बहुत कम होंगे। ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं, ज़्यादातर अच्छाई अभी भी एग्जिस्ट करती है। आपके अंदर की भी अच्छाई बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 3। तो अब आप जो है रोमांस में, लव में आपको अब बिलीव करने लगेंगे फिर से, और रोमांटिक गाने आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इवन जो पुराने जो ओल्ड सॉन्ग्स है 70s 80s के, वो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। ओल्ड मूवीज़ जैसे कि एक नया ज़माना करके धर्मेंद्र जी की मूवी थी, दो चोर करके एक धर्मेंद्र जी की मूवी थी, और तुम हंसी मैं जवान, है ना। ऐसी जो मूवीज़ ये आप बहुत इन्जॉय करेंगे। ओल्ड मूवीज़, अगेन रोमांटिक मूवीज़ आप बहुत इन्जॉय करेंगे, एंड यू विल फील दैट येस देयर फेरी टेल्स डू एग्जिस्ट, आज भी एग्जिस्ट करती हैं। सो ये चीज़ है। इवन ओल्ड सॉन्ग्स ओल्ड मेलोडीज़ आपको सुनने का ज़्यादा मन करने वाला है 2026 में, ये नज़र आ रहा है।
और कपड़े आप रंग बिरंगे ज़्यादा पहनेंगे. रेड कलर विल बिकम योर फेवरेट इन 2026. रेड, पिंक, मतलब ब्राइट कलर्स विल बिकम योर फेवरेट. ब्राइट कलर्स आपका पहनने का ज़्यादा मन करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर. पाइल नंबर 3, ज्वेलरी आप खरीदेंगे 2026 में, तो ये नज़र आ रहा है. बालों को कलर कराएंगे, ऐसा नज़र आ रहा है. जो मतलब आपका दिल करता है वो आप करने वाले हैं 2026 में, ये दिख रहा है. और समथिंग एंड इवन आई फील कि वो जो एक दीवानापन होता है ना कि जैसे वो गीत था, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में जो मज़ा है परवाने जानते हैं, तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो. ये जो गीत था, ये दीवानों की बातें, ये इस टाइप के गीत आपको बहुत अच्छे लगे, रोमांटिक सॉन्ग्स आपको बहुत अच्छे लगे. एंड यू विल फील दैट इट्स ओके टू बी क्रेजी. यू विल फील इट्स सो फन टू बी क्रेजी. इट्स सो फन टू नॉट नो एवरीथिंग, राइट. ज़रूरी नहीं होता है कि हमें हर चीज़ को जानना है, समझना है. कई बार ना समझी में जो खुशी है, आनंद है, वो समझ के या समझदार होके नहीं आता है. तो आप कहीं ना कहीं नॉलेज होते हुए भी इनोसेंट हो जाओगे उस नॉलेज से, बिकॉज उसमें फ़न है. तो दीवाने मस्ताने ऐसे हो जाओगे 2026 में. ओके, वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया. ओके, एंड वी हैव टोटलिटी. ओह माय गॉड, टोटलिटी कार्ड में भी, स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड में भी, लाइक पीपल आर बेंडिंग, दे आर बीइंग मोर फ्लेक्सिबल. आई मीन ओके, ये तो बहुत यूनिक कार्ड आ गया है. इट डज शोज मी, जहाँ पर लोगों की ना हो जाती है वहीं तो आपकी खुशी शुरू होती है. जहाँ लोगों की सोच रुक जाती है वहीं से ही आपकी सोच शुरू होती है. आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं. डर बिल्कुल भी नहीं रहे, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जा रहे हैं. जैसे हम योगा पिलाटे करते हैं, कई बार हम एरियल योगा करते हैं, तो ऐसा टू बी ऑनेस्ट, जैसे अगेन मैं खुद एरियल योगा कर रही हूँ आजकल, पिलाटे और योगा, तो आई फील कि ये तो चीज़ मेरे से नहीं होने वाली. बट देन ये जो योगा टीचर इंस्ट्रक्टर है कहते नहीं हो जाएगा मैम, आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा, और हो भी जाता है और बड़ा ही मज़ा आता है ना. तो जो चीज़ें आप कहते थे नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मेरे तो बहुत कंफर्ट जोन से बाहर है, ऐसा तो मुझसे होने ही नहीं वाला, ये तो मेरे बस का ही नहीं है, यू विल नोटिस कि अब वो चीज़ आप इजीली कर पाएंगे, मज़े से कर पाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते और बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल. नेचर वाइज भी फ्लेक्सिबल हो रहे हैं कि हर नेचर वाले पर्सन के साथ आप ढल जाते हैं, आप इजीली बातचीत कर पाते हैं, ईगोलेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्पफुल नज़र आ रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना, मज़ा कर रहे हैं, अकेलापन नहीं फील करेंगे. वी हैव एग्जिस्टेंस, यू आर सिंपली एग्जिस्टिंग, यू आर नॉट अ परफेक्ट पर्सन. पाइल नंबर 3, देन ऑल्सो यू आर लिविंग द बेस्ट लाइफ. एग्जिस्ट करते हैं आप. जो जीने में मज़ा है ना, वो जो रियल जीना है, उसमें हम बस जी रहे हैं, आनंद में हैं. और एक होता है मर के जीना. तो हमें इतना भी नॉलेजफुल नहीं होना, इतना भी नॉलेजेबल नहीं होना कि हम अपनी ज़िंदगी ही ना जी पाएँ. हम कई बार ऐसा देखते हैं ना कि अरे ये चिप्स के पैकेट में इतना पाम ऑयल है, इतने प्रिजर्वेटिव हैं, इस चॉकलेट में ऐसा है वैसा है, जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं. ऐसे तो बीमार हो जाएंगे, मेंटली बीमार हो जाएंगे कि अब तो कुछ खाने लायक है ही नहीं, ये भी अनहेल्दी, वो भी अनहेल्दी. इतना नहीं ज्ञान नहीं होना हमने. पढ़ के ना ज़्यादा दिमाग ख़राब ही हो जाता है, तो ज़्यादा पढ़ने का नहीं. आप अगेन सिंपली एग्जिस्ट करो और करोगे भी. मतलब ये तो चीज़ होगी, मेरे कहने से तो क्या ही होता है, पर मतलब किसी के समझाने से नहीं होता कुछ. वो तो आप अपने आप ही आप फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे थॉट प्रोसेस रखते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में. यू विल सिंपली एग्जिस्ट, यू विल नॉट थिंक अ लॉट, ओ ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, अच्छा है, ये बुरा है. यू जस्ट नो कि मेरे को जो करना है वो अच्छे से अच्छे करना है.
मेरा कर्म मेरे साथ है, मेरे को अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि कर्म ऑलवेज कम्स बैक, गुड और बैड इट ऑलवेज कम्स बैक। तो आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दोगे कि मेरे को किसी का बुरा नहीं करना, मेरे को किसी को तंग नहीं करना, मेरे को किसी को रुलाना नहीं है, मेरे को हर जिससे भी मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ मुझे से निचोड़ नहीं देना प्यार के नाम पर, मेरे को उसको स्नेह और प्यार और सम्मान देना ही देना है। और मेरे सभी अपने हैं। माना वसुधैव कुटुंबकम अब नहीं रहा, हर कंट्री एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे की लैंड हड़पने के लिए है, ऑयल हड़पने के लिए है, ये सब है। पर हम अपने थॉट, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए तो ये सोच सकते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, हर पर्सन, हर सोल मेरा एक परिवार है। हम अपने पीस ऑफ माइंड के लिए तो सोच सकते हैं ना। हम अपना एक बार लॉजिकल माइंड साइड रख देना, क्योंकि लॉजिक से हमने जी के देख लिया है। पाइल नंबर 3, आप बहुत नॉलेजफुल इंडिविजुअल हो, मर्क्यूरियस पर्सन हो। इनफैक्ट मरकरी भी नॉलेज का कारक है, मरकरी जुपिटर वीनस ये तीनों नॉलेज के कारक हैं, नॉलेज विजडम के कारक हैं, इंफॉर्मेशन के कारक हैं। बट जब मरकरी हाइपर एक्टिव होता है ना एक पर्सन के चार्ट में, तो वो नॉलेजफुल तो है, उसको किसी सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज है, पर उस नॉलेज का वो इतना ज़्यादा मतलब सनकी हो जाता है कि वो जीना भूल जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञानी बनने में मज़ा नहीं है। ज्ञान आप में बहुत है, पाइल नंबर 3 ये दिखता है, यू आर वेरी नॉलेजफुल। बट अब जो 2026 का समय है, जो 2026 आपके लिए चेंज जो लेकर आ रहा है, वो ये है कि अज्ञानता में, इनोसेंस में बहुत मज़ा है। हमें नहीं जानना भाई कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। ये शूद्रपना, ये नहीं हमने खिंडाना कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, ये शूद्रपना होता है, ये हम नहीं करेंगे। आप कहते हो अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है, अच्छा ही हो कि वो मेरे को पता ना लगे कि ये मेरे बारे में बुरा सोचता है, अच्छा ही है कि मेरे को पता ही ना लगे, इट्स अ गुड थिंग। नहीं तो मैं ओवर थिंक कर करके अपना दिमाग जो हूँ फ्राई कर दूंगी। तो आप में बहुत नॉलेज है, बट व्हाट आई सी इज 2026 में यू आर हैविंग फन, यू आर हैविंग फन, यू आर अर्निंग मनी, येस, you are taking good care of your physical and mental health, you are spending time, lot of time in creativity, मज़ा मस्ती आप बहुत कर रहे हैं। then we have guides, ओघम, tree spirits. So this card here shows me that you can become some kind of preacher, teacher, advisor, counselor, consultant, and you are a very knowledgeful individual again. आप जिस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं easily फोकस कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है 2026 में। तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो बहुत अच्छा आपके लिए समय होने वाला है, easily लर्न कर पाएंगे। एंड यू हैव पावर, करेज, स्ट्रेंथ, तो ऑब्वियसली यू आर गोना फील मोर पावरफुल, क्योंकि आप ज़्यादा सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे। तो बाहुबल भी, जैसे मार्स 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, मैंने कहा कि पावरफुल कंडीशंस होती है, मार्स की पोजीशंस होती है। मार्स मरकरी का कंजंक्शन हो तो भी ये पावरफुल कॉम्बिनेशन है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है ऐसा इंडिविजुअल, क्योंकि मार्स बल है, बाहुबल है, और मरकरी बुद्धि है। तो जब बुद्धि बल और बाहुबल एक साथ आ जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, राजा बन जाता है दुनिया में। तो आप वो राजा बनते हुए नजर आ रहा है। राजा तो वही है ना जो अपनी मस्ती में रहे, जो अपनी उमंग उत्साह में रहे। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स को लेकर हम कह रहे थे कि हमें तो बेपरवाह बादशाह बनना है, हमने सर्वेंट नहीं बनना, काम ही काम नहीं करते रहना। हम पैदा मजदूरी करने के लिए नहीं हुए हैं, हम खुशी से रहने के लिए पैदा हुए हैं, हम मस्त रहने के लिए पैदा हुए हैं। राजा बेपरवाह बादशाह बनने वाले हैं, बने हुए हैं, हम बनेंगे नहीं, ऑलरेडी बने हुए हैं बेपरवाह बादशाह। ये जीवन जीने के लिए आए हैं। यानी जब आप रात को सोओगे आप अपने माइंड को स्विच ऑफ कर पाओगे और आराम से सो पाओगे, और फिर जब उठोगे अपने माइंड को स्विच ऑन करोगे और काम पे लग जाओगे। जब काम करना है और जब खाना खाना है तो आराम से खाना खाओगे, मस्ती मजाक करना तो मस्ती मजाक करोगे, है ना। ऐसे आप चलने वाले हैं। आप बहुत करेजस नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेंथ आप में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बाहुबल भी है, हिम्मत भी है, करेज भी है, सब है, सब कुछ है आपके पास। पाइल नंबर 3, जहाँ पर लगता है कि इस इंडिविजुअल को डराना धमकाना पड़ेगा वहाँ डरा धमका भी दोगे, और जहाँ प्यार से पेश आना है वहाँ प्यार से भी पेश आओगे, बाकी अपनी मस्ती में रहोगे, किसी का बुरा आप नहीं चाहोगे। नॉर्थ नोड है फ्यूचरिस्टिक कार्ड, अगेन फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने वाला, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने वाले आप इंडिविजुअल नज़र आ रहे हैं। नॉर्थ नोड इज़ बेसिकली राहु, तो राहु एलिमेंट है, तो यानी आप इंजॉय करोगे लाइफ को। राहु इंजॉयमेंट के बारे में ही होता है। राहु इज़ अबाउट हैविंग फाइन वाइन, doing fine, going to a fine very good restaurant, wearing name brand clothes, name brand watches, getting all luxuries in life, getting a very good Wi-Fi connection, ये सब राहु से ही आता है।
सोशल मीडिया पर आप कंटेंट पोस्ट करेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा वाईफाई 2026 में आपको मिल सकता है। आपका घर एक ऐसी जगह पर हो, आप एक ऐसी जगह पर रहो जहाँ पर ऑलरेडी टावर लगा हो, है ना, मोबाइल टावर या क्या कहते हैं सिग्नल के लिए जो टावर्स लगे होते हैं वो हो। देन वी हैव एक्वेरियस, इट्स इज कोलैबोरेट। सो एक्वेरियस इज अगेन अ साइन जहाँ पर राहु रूल्ड नक्षत्र शतभिषाक आते हैं। तो राहु रिप्रेजेंट समवन हु इज अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर, नॉन ट्रेडिशनल पर्सन इज राहु एलिमेंट, इज द राहु पर्सन। तो जिनका राहु जेमिनाई का होता है, राहु 10th हाउस का होता है, राहु असेंडेंट में होता है, असेंडेंट लॉर्ड राहु के साथ कंजंक्ट होता है, सन राहु का कंजंक्शन हो या मून राहु का कंजंक्शन हो, पूर्णिमा या फिर अमावस्या का जन्म हो, ऐसा इंडिविजुअल एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ करता है दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में कॉम्बिनेशन है। तो जब भी सन राहु, सन केतु, मून राहु, मून केतु का कंजंक्शन हो, ट्राइन में हो ये प्लैनेट्स, मून के ट्राइन में राहु केतु हो, सन के ट्राइन में राहु केतु हो, सन राहु या केतु से कंजंक्ट हो, मून राहु या केतु से कंजंक्ट हो, इसको कहते हैं कि ये एक्लिप्स हो गए हमारे इल्यूमिनरी सन और मून। राजा और रानी होते हैं ना सन और मून। और या फिर सन मून कंजंक्ट है, या सन के 7th हाउस में मून है, या तो अमावस या पूर्णिमा पे आप पैदा हो, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मैं जिस बच्चे की भी बात बता रही हूँ ना कि मैं ऐसे, मेरी कज़न है छोटी 4-5 साल की है, उसका भी बर्थ पूर्णिमा का है। शी इज़ गोना बी समवन हु इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। वो अभी से दिख रहा है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी, वो सबसे अलग है। तो वही है ना कि पहले ही पता लग जाता है ये बच्चा कुछ अलग है। तो ऐसे आपका भी कहीं ना कहीं बर्थ पाइल नंबर 3 पूर्णिमा अमावस पे हो, सन मून का कंजंक्शन हो, सन से 7th हाउस में मून प्लेस्ड हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी आप होगे ज़रूर। तो अगेन सन राहु कंजंक्शन हो, सन केतु कंजंक्शन, एक्स्ट्रॉर्डनरी हो गए आप, अनकन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल पर्सन हो गए आप, भीड़ से हट के स्टेज पर जाने वाले इंडिविजुअल हो, भीड़ के पार्ट बनने वाले इंडिविजुअल नहीं हो। यू बिलोंग टू द स्टेज where people can see you, where people can listen to you. Aquarius is a sign 2026 में जहाँ पर ये शो करता है कि नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, बड़ा नेटवर्क होगा। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी, ऐसा तो नहीं, बट व्हाट आई सी इज़ कि आपका नेटवर्क बढ़ेगा 2026 में। मतलब बहुत लोग आपको जानेंगे। ऑफकोर्स सोशल मीडिया पर नेम फेम होगा, बट मैं इवन पर्सनल लाइफ में कह रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, फिजिकली लोग आपको बहुत जानेंगे, इमोशनली बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत लोगों से आपका कनेक्शन बन रहा है 2026 में, और बिकमिंग क्वाइट एक्सट्रोवर्टेड इन द ईयर 2026, ये यहाँ पर दिखता है। और नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच है लाइफ को लेकर। लोग शायद 2026 में भाग दौड़ कर रहे हैं, बस हमारा करियर बन जाए, पैसे कमा ले, जो कि आपका भी हो सकता है कि आप भी बहुत अच्छे पैसे कमाओ, करियर में पूरे एफर्ट करो, बट आपका गोल ये है कि मेरे को जीवन जीना है, अच्छे से अच्छा जीना है, मज़ेदार से मज़ेदार जीवन जीना है। क्योंकि पैसा इम्पॉर्टेंट है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है। तो आप पैसे कमाने के लिए भी समय रखोगे और उस पैसे को खर्च करने के लिए भी समय रखोगे। सिर्फ बैंक में बचा के नहीं रखोगे, उस पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे आप, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर खरीद पाएंगे 2026 में, है ना। अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे वो पैसे, अपने परिवार पे इन्वेस्ट करेंगे। Then we have Father of Water. It says balance and harmony. Absolutely yes. 2026 is going to be the year where you're going to experience balance and harmony. कि भाई पैसे तो कमा रहे हैं, बहुत अच्छे कमा लेंगे, पर उस पैसे को खर्च करने का भी अब आपके पास समय होगा। वो पैसा आपको खुशी देने लगेगा, सुख देने लगेगा, है ना। हो सकता है एक नई चेयर खरीद लो, नया बेड खरीद लो, नया गद्दा आ जाए आपके पास सोने के लिए, मैट्रेस, है ना। तो लग्जरी कंफर्ट हो गया ना। फिर ये कहाँ पहले मेट्रो में जाते थे या बस में जाते थे, अब अपनी गाड़ी आ गई है ना। ये चीज़ें होंगी, आप पैसे को एंजॉय करेंगे 2026 में, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बैलेंस और हार्मनी नज़र आ रहा है। इवन कोई फादरली फिगर से मुलाकात हो, या आपके खुद के फादर के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, फादर को प्रमोशन मिले, फादर के जीवन में कुछ अच्छा हो, या कोई फादरली फिगर विल फिल योर कप, है ना, विल आस्क यू कि अगेन मैं एक एग्जाम्पल अगेन वही दे देती हूँ अपना ही, क्योंकि देखिए मेरा भी बर्थडे 31 को आता है और ये पाइल 331 की पाइल भी है। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ ऐसा खुद हो चुका है। अगेन मैं फिर से बता देती हूँ, पहले भी बताया, जो मेरे होम्योपैथी डॉक्टर हैं, मैं जब भी उनके पास जाती हूँ तो मेरे से पूछते हैं, बेटे क्या खाओगे क्या खाओगे। तो मैं इधर ही मंगा देता हूँ ना मैकडोनल्ड्स, फिर इधर ही तुम चोको संडे ब्राउनी अपना खा लो, मैं मंगा रहा हूँ,
इधर ही खा लो और आई सेड कि मेरे को तो मॉल जाके ही खाना है. तो लाइक ही ऑलवेज आस्क मी, अक्षता क्या खाओगे बेटे, क्या खाओगे, इज़ लाइक दैट. ऐसा मेरे से ना यूजुअली पूछता नहीं कोई घर में. वही है ना, घर में तो चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो चाहे आप कोई पॉलिटिशियन हो, घर में इज्जत ज़रा कम ही मिलती है सभी को. तो घर में कोई नहीं पूछता कि क्या खाना है. घर में तो होता ही ये बना है, खाना तो खा ले, नहीं खाना तो देख लियो, है ना. घर में कोई नहीं पूछता ऐसे. मैं ही पूछती हूँ सभी को कि चलो यहाँ चलते हैं या हम ये खाते हैं, मैं ये मंगा दूँ आपके लिए. आई एम दैट पर्सन जो अगर रेस्टोरेंट में भी अपने परिवार के साथ जाएगा तो आई विल बी द वन जो वेटर होते हैं उनको मैं हाथ उठा के बुलाऊंगी कि भाई आओ हमारा ऑर्डर लो, इन्होंने ये खाना है, ऐसा खाना है. वेरस जब मैं अपने होम्योपैथी डॉक्टर अंकल के पास जाती हूँ तो ही इज़ द वन जो कहता है मैं ये ऑर्डर करता हूँ, मैं ये बनवाता हूँ. चाय पीते हैं, चलो मैंने चाय बनवा दी है. पकौड़े खाते हैं, चलो. तो इज़ लाइक दैट कि जो इनिशिएटिव ले, मतलब है ना. इसको भी कहते हैं कि हमारा कोई कप फिल कर रहा है, कोई ऐसा है मतलब जीवन में जो हमारा कप फिल करने को तैयार है. हम सभी के लिए कप फिल करते हैं, पर देखिए आज हमारे लिए कोई खड़ा है जो हमारा कप फिल करने को तैयार है. तो ऐसा पर्सन का होना जीवन में बहुत आपको, आपके इनर चाइल्ड को, आपके मरकरी को हील करता है, आपके इनर चाइल्ड को हील करता है. तो अगेन आपको ऐसा कोई फादरली फिगर मिले, ऐसा कोई गुरु मेंटोर मिले, या आपका खुद का रिलेशन फादर के साथ बहुत अच्छा हो, या फादर आपको ऐसे पूछने लग जाए कि ये मंगाऊँ मैं, ये खाएगी, ये खाएगा, ऐसा है ना. तो ये ऐसा कोई पर्सन होगा, मेल पर्सन, अगेन मेल हो सकता है या ऐसी फीमेल जो थोड़ी मैस्कुलिन हो, है ना. ये आपको बहुत पूछेगी. दे विल फिल योर कप 2026 में. फाइनली विल गेट समवन हु जो आपको पूछता है, आपको पुचकारता है. जैसे बच्चे को हम कहते हैं खा ले बेटा, ऐसे. तो आपको भी कोई पुचकारे, आपको भी कोई पूछेगा, खुशी होती है ना. मन अच्छा लगता है ना ऐसे इंडिविजुअल के साथ जो हमें पूछेगा, हमारी सुने, है ना. तो ऐसा कोई मिलेगा. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. एंड या एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो मरकरी, जुपिटर, वीनस या फिर सन. मरकरी, जुपिटर, वीनस या फिर सैटर्न, है ना. इनमें से प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा, आपको सिग्निफाई कर रहा होगा. एक्वेरियस साइन, जेमिनाई, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. जेमिनाई में टॉरस भी कहने के प्रॉमिनेंट है. जेमिनाई में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, पूर्व भाद्रपदा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, फिर सतविशाख एंड पूर्व भाद्रपदा. सो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवम से चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. 3rd, 5th, 10th, 11th हाउसेज में कोई ना कोई प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. So yeah, that was pretty much it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. If you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized to buy me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.